we'll be discussing TCS provisions which have been amended recently. And a speaker for today is CA Amit Jainji, who has always been gracious enough to accept our invitation and come to our study meeting on a very short notice. Before we start the main session, I'd like our President CAS Krishnanji to say a few words and welcome all of you. Very warm good evening to each and everyone who has joined our webinar on this TCS provisions under Income Tax Act. At the outset, I wish to thank Amit Jainji for accepting our invitation and being amongst us as a speaker on this session. TCS provisions, as such, we are well versed with this provision, this terminology of TCS. Since long, it has been there in the Income Tax Act, and recently we have seen this provision in the GST law as well. This was, so far, it was a good specific under Income Tax Act. Now it will be more on a turnover basis, and this has a wide implications, and it has started from 1st October. 1st October has become such an important date now. It seems there are plenty of amendments apart from taxation laws in other allied in our day-to-day life also. From 1st October there are plenty of changes which have been come across. So this TCS provision has come out with lot of controversies, and I wish Amit to throw light on very large number of issues. Since I deal with the GST part, it has become a question of whether TCS is applicable on the tax that TCS amount, say whether GST is to be charged after collecting the TCS amount or TCS to be collected subsequent to charging of GST. If at all we collect TCS before charging of GST, then GST will be also applicable on the TCS portion. And as far as I understand, I have limited knowledge of income tax. I have gone through the FAQ. It says that, if I am wrong, Amit will correct me. The tax GST will be also to be applicable on the TCS to be collected. So this, apart from that, what will happen if you can in the year-end transaction, whether when the threshold limit of 50 lakhs is to be breached, whether we can postpone it from the buyer end or at the seller end, because it is on the receipt basis. Actually, both has got a role to play on this part, and whether this could be permissible, and whether as we are discussing with Mr. Mridul also, he was also saying that e-way bill, which has a very basic ingredient in the GST, TDS have some impact, because the invoice value and the GST value, the amount shown in the e-way bill will have a different value. And that will also have some impact whether for that amount a separate debit note could be always be issued. These are all procedural matters which has to be taken on a case-to-case basis. I believe Amit will be throwing more light on the practical aspect on this as TCS provisions. With these words, I welcome Amit to have his deliberation on the subject. Thank you. Sir, should I start? Yeah. Thank you, Krishnan sir, Saurabh, Mridul sir, and all the managing committee members of Tax Law Bar Association. Thanks again for giving me a chance to discuss the important issue. And as always, Krishnan sir is dot on time. Whenever, I mean, he's particular that important issue which needs discussion. He is very particular to hold seminars. And this really helps each other to discuss the various issues. And as we have been seeing in the recent past,
that government before enacting the provision, गवर्नमेंट जो प्रोविजन लाती है आज की डेट में, उसके बाद वो इतना कंफ्यूजन रहता है कि उनको 2-3 सर्कुलर पे मिनिमम लाने ही रहते हैं। तो ये चीज एक बड़ी हर बार डिस्कशन का मैटर है कि व्हाई नॉट बिफोर ड्राफ्टिंग द एक्ट उसको उस चीजें जितनी कम हो सके, क्योंकि अभी अपन जब जैसे प्रेजेंटेशन देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा कि अगर हम 6 महीने बाद मान लीजिए एक्ट पढ़ते हैं, तो अगर हम एक्ट से चलेंगे तो हम गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। एक्ट में कुछ लिखा हुआ है और जैसे 206 के अंदर सेक्शन 206 आज हमारा मेन हम एम्फसाइज करेंगे 206 1H पे। तो 1H में जो सबसेक्शन 1I है वहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू द गाइडलाइंस। तो उस सेक्शन में ही उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया कि गवर्नमेंट के पास गाइडलाइंस लाने की प्रोविजन है। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये एक्ट से काम नहीं होगा, गाइडलाइंस लानी पड़ेंगी। तो अब द मोमेंट वो गाइडलाइंस को रेफर नहीं करेंगे और सिंपल एक्ट को रेफर करेंगे, तो पॉसिबल है 2-3 महीने बाद जब हम कभी रेफर करें तो वी कैन इंटरप्रेट रॉन्ग। सो विद दिस बैकग्राउंड आज का मेजर हमारा थ्रस्ट रहेगा टू डिस्कस ऑन टीसीएस प्रोविजंस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी विल बी डिस्कसिंग ऑन टीसीएस ऑन गुड्स, द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन टीसीएस पे जो है TCS to collect on sale of goods. Now, basically, as Krishnan sir also was telling about that GST implication, you know, this first we will understand the difference between TDS and TCS. All must be knowing, लेकिन just एक brief discussion के लिए I will try to just review that thing. TDS और TCS में different क्या है? TDS में the person who is making the payment उसे TDS डिडक्ट करना पड़ता है एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 194, 194A, I, C, J सेक्शंस हैं। लेकिन TCS में सेक्शन 206C इज डीलिंग विद दैट सेक्शन, और उसमें यह है कि जब सेलर है उसको बायर से कलेक्ट करना है, तो कंसेप्ट डिफरेंट हो गया। TDS और TCS में कंसेप्ट टोटली डिफरेंट हो गया। TDS में जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स काटना है। TCS में जब सेलर पेमेंट रिसीव कर रहा है तो बायर से उसको पैसे और लेना है और जमा करना है। जैसे अभी इसके पहले आप ध्यान रखेंगे, आपने गाड़ी खरीदने गए आप और 10 लाख के ऊपर की व्हीकल है, तो जब आप डीलर को पेमेंट करेंगे तो सपोज गाड़ी की वैल्यू 15 लाख है, तो आप 15 लाख प्लस TCS का अमाउंट उसको देंगे। तो हुआ क्या, सेलर ने आपसे कलेक्ट किया और डिपॉजिट कर दिया। तो TCS इज टोटली रिवर्स। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या कर दिया इस सेक्शन में, पर्टिकुलरली 206C 1H जो हमारा आज का मेन थ्रस्ट है, वो ये है कि बेसिकली इसमें 2-3 कंसेप्ट्स बिल्कुल चेंज कर दिए। 2 कंसेप्ट्स हमको ध्यान रखना है जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में TDS को लेके थे, जो यहां बिल्कुल रिवर्स कर दिए हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि जैसे कृष्णन सर कह रहे थे GST वाला, तो पहले ये हमारा TDS में ये रूल था, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल फीस हम चार्ज कर रहे हैं 1 लाख, उसके ऊपर हमने 18% GST चार्ज किया, तो जो द पर्सन हु वाज मेकिंग द पेमेंट उसको TDS काटना किस पे था, 1 लाख के ऊपर, ना कि 1,18,000 पे। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था इनकम टैक्स का, और ये वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट था कि हमें TDS किस पे काटना है, प्रिंसिपल अमाउंट पे, नॉट इंक्लूडिंग GST। लेकिन जो यहाँ सेक्शन आ गया है 206 1H, यहाँ हमें TDS किस पे कलेक्ट करना है, सेल कंसिडरेशन वर्ड यूज किया है, तो वॉट एवर अमाउंट वी आर रिसीविंग फ्रॉम दी बायर प्लस GST, और उसके ऊपर हमको TCS कलेक्ट करना है। अभी हम इनवॉइस का प्रोफॉर्मा आगे देखेंगे, बट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2 चीजें हमें ध्यान रखना है जो हमारा रूटीन कंसेप्ट से इस सेक्शन में डिफरेंट है। पहला, GST इंक्लूड करके हमें TCS लेना है, लेकिन TDS के सेक्शन में हमें GST पे TDS नहीं काटना था। सेकंड, हमने पढ़ा हुआ है TDS के अंदर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स में, कि हमने अगर बुक्स में प्रोविजन कर लिया प्रोफेशनल फीस का या कोई भी खर्चे का जिस पे TDS लगता है, तो हमें उस पे TDS काटना है, हम पेमेंट करें या नहीं करें। लेकिन इस सेक्शन में क्या कर दिया है,
आपने इनवॉइस रेज कर दी, आपको पैसा नहीं आया, तो आपको टीसीएस नहीं जमा करना है। टीसीएस कब जमा करना है? जब सेल्स कंसिडरेशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमारा रूटीन कंसेप्ट जो हमारे एप्लीकेबल थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जीएसटी पे भी टीसीएस कलेक्ट करना है, और जब हमने इनवॉइस रेज किया उस समय टीसीएस हमको जमा नहीं करना है। हमने मान लीजिए नवंबर में इनवॉइस रेज किया, हमको मार्च 2021 में पैसा आ रहा है, तो हमको मार्च के नेक्स्ट मंथ में जमा करना है। मींस मंथ ऑफ पेमेंट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द मंथ ऑफ इनवॉइस। सो जस्ट बेसिक हमारा इसका पर्पस क्या है इस सेक्शन का आने का, जैसा अभी कृष्ण सर बात कर रहे थे कि जीएसटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। क्या हो रहा था, जब जीएसटी के रिटर्न्स फाइल हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत मिसमैच है, 2A 1 3 सब बहुत मिसमैच था, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं थे, फेक परचेजेस के इनवॉइसेस मिल रही थी, कि परचेजेस की फेक इनवॉइसेस मिल रही थी, इशू कर दिया, पेमेंट नहीं आ रहा। 180 डेज से ऊपर क्रेडिट जो प्रोविजन है जीएसटी में कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया 180 डेज में तो इनपुट रिवर्स करना है। तो इन सब चीजों से ये महसूस हुआ कि अगर ये जो परचेज ट्रांजैक्शन है इस पे कहीं ना कहीं चेक लगाना जरूरी है। तो दिस इज द मेजर रीजन। और सेकंड रीजन ये है कि जो अभी ये फेसलेस की तरफ हम बढ़ चुके हैं, इसमें डाटा कैप्चर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि अब जो जितना डाटा इनके पास मिलेगा उससे ये स्क्रूटनी कर पाएंगे। तो दो चीजें मेरा मानना है इसके अंदर रीजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ दिस सेक्शन। फर्स्ट, जीएसटी में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स गई, फेक इनवॉइसेस, डिफरेंस इन रिटर्न्स, दैट इज द रीजन। एंड एक हमारा जो फेसलेस की तरफ हमारे को उनको डाटा चाहिए, ये दो हमारे मेजर रीजन है इस सेक्शन के आने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन को समझते हैं। तो इस सेक्शन में जो वर्ड्स यूज किए हैं ना, उस एक एक वर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। प्लस मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि जो 206C1H में जो 1I सेक्शन है, जहां ये लिखा है कि गवर्नमेंट को गाइडलाइंस लाने का प्रोविजन है, तो आपको कुछ भी पढ़ना हो 206 के अंदर 1H में, तो यू शुड ऑलवेज रीड द गाइडलाइंस टुगेदर विद द सेक्शन। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि सेक्शन में कुछ लिखा है लेकिन गाइडलाइन में उसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया है। तो बिना गाइडलाइन के अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन तो गलत पढ़ लेंगे। सो चार्जिंग सेक्शन अगर हम पढ़ें, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives an amount as consideration for a sale of goods of the aggregate of such value exceeding 50 lakhs in any previous year other than the goods being export or goods covered under। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था आपसे, यहाँ क्या लिखा है, goods covered, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। goods covered वर्ड यूज किया है, covered। covered मतलब क्या हुआ, जैसे 1F सेक्शन है, जो सेक्शन 1F है ये डील करता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। अब मोटर व्हीकल को हम सेल करते हैं तो हमको 1F में टीसीएस लगता है। तो अब यहां लिखा है कवर्ड। कवर्ड और लाइबल में डिफरेंस है। 1F में कब आता है, जब 10 लाख से ऊपर का हमारा गाड़ी परचेज करेंगे हम, तो हम 1F में चले जाएंगे। अब 10 लाख से ऊपर की गाड़ी परचेज की तो हम 1F में आ गए। और हम अब मान लीजिए मैंने 10 गाड़ी खरीदी और वो 6 लाख की एक गाड़ी थी, अलग अलग महीने में खरीदी। समझिएगा बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक मैंने अक्टूबर में एक गाड़ी खरीदी 6 लाख की, फिर अगले महीने में एक गाड़ी खरीदी 7 लाख की, एक ही डीलर से। तो अब क्या हो रहा है कि मेरा टोटल अमाउंट तो 50 लाख से ऊपर हो रहा है, तो मैं 206C1H में आ जाऊंगा, क्योंकि 1H डील्स विथ सेल ऑफ गुड्स। मोटर व्हीकल इज अ गुड। नाउ इस सेक्शन में क्या लिखा है, गुड्स कवर्ड इन सबसेक्शन 1F। तो अगर मैं इस सेक्शन से चलूंगा तो मैं बोलूंगा गुड्स कवर्ड लिखा है, मींस ये नहीं लिखा कि मैं वहां पे टीसीएस के लिए लायबल हूं या नहीं हूं। सो द मोमेंट आई से गुड्स कवर्ड 1F, मैं तो ये ओपिनियन दूंगा कि भाई टीसीएस नहीं लगेगा। बट जो हम बात कर रहे हैं गाइडलाइंस की, 29 सितंबर और 30 सितंबर में जो गाइडलाइंस और प्रेस रिलीज आई है, वहां उन्होंने इसको काउंटर कर दिया कि वहां ये बोल दिया कि गुड्स कवर्ड को आप भूल जाइए। आप ये देखिए कि अगर आप वहां टैक्स भर रहे हैं तो आप वहां आइए, और वहां नहीं भर रहे हैं और 50 लाख से ऊपर आते हैं तो आप यहाँ आ जाइए। एम आई क्लियर? तो ये बेसिक
डिफरेंस है जो हमारे को सेक्शन से काम नहीं चलेगा, हमें गाइडलाइन भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। अब इसको वन बाय वन एक एक वर्ड को समझेंगे, क्योंकि हमने अगर इस सेक्शन के वर्ड्स को समझ लिया तो जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी मार्केट में, मतलब पब्लिक में, सीएस में, एडवोकेट्स में, हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप उसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले इट सेज पर्सन, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर। तो पर्सन सेक्शन 231 में डिफाइंड है। पर्सन का मतलब क्या है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन। तो पहली बात तो पर्सन होना चाहिए। पर्सन के अंदर गवर्नमेंट नहीं आती है। 231 इनकम टैक्स में डिफाइंड है, उसमें गवर्नमेंट नहीं आती है। तो पहली बात तो सेलर को एक पर्सन होना चाहिए। पर्सन को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें तो इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी, एंड एनी अदर पर्सन। तो एनजीओ जैसे होती हैं, यहाँ जो साइड में मैंने लिखा है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इवन एन एंटिटी विच इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गेन्स इज अ पर्सन। सो सपोज एनजीओ है तो वो भी पर्सन है। सो अ पर्सन हमने डिफाइन कर दिया 231 में पर्सन। अब एक बात आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट, बट उसका कहाँ रेफरेंस है? एक सेक्शन 50C में रेफर किया गया है। एंड कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन मींस पेमेंट ऑफ मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम आगे देखेंगे अभी। नाउ वैल्यू, वैल्यू यहाँ जो डिफाइन की गई है 50। अभी हम इसको एक बेसिक हम कंसेप्ट देख रहे हैं, फिर इसको हम एक एक चीज को लिंक करके फिर से डिटेल में समझेंगे। वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू which exceeds 50 lakhs in any previous year. Now, what are the exclusion? Export को उन्होंने exclude कर दिया है। मतलब अगर हम export कर रहे हैं तो जो suppose we are exporting, तो हम seller हो गए। अब buyer बाहर है तो उसको TCS, वहां उस केस में TCS applicable नहीं है। फिर आ गया goods covered in subsection so and so, मैंने डिस्कस किया था। goods covered in subsection 1F, goods covered in 1G मीन्स ओवरसीज कॉन्ट्रैक्टर। अभी इसको हम पूरा समझेंगे, जस्ट हम एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सेक्शन में क्या क्या लिखा है, फिर हम एक एक चीज को फिर से डिटेल में समझेंगे। नाउ द ट्रिगर पॉइंट ऑफ लेवी इज व्हाट? शैल एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम द बायर। एक्ट में ये नहीं लिखा है कि बिल, एक्ट में लिखा है जब पैसा रिसीव करो तो वो अमाउंट रिसीव, पैसा उनसे ले लो, टीसीएस कलेक्ट करो। बिल देते समय नहीं करना है। और एक पॉइंट लिखा है कि रेट डिपेंड करता है, उसके पास आधार कार्ड और पैन नंबर है तो रेट अलग है, नहीं है तो अलग है। सेलर, नाउ सेलर हैज बीन डिफाइंड। सर ये इसकी पीपीटी पता नहीं क्या, ये फोटो से दिक्कत आ रही है। 1 मिनट चलो ऊपर ये भी चल जाएगा। Now seller for the purpose of this section, seller means a person। ये हम थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन के वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या हुआ? पर्सन होना चाहिए, पर्सन बीइंग अ सेलर। तो सेलर मीन्स अ पर्सन। पर्सन कहाँ है? सेक्शन 231 में डिफाइंड है। अब सेलर का मतलब क्या है? whose total sales ग्रॉस रिसीव्स। समझिएगा इस वर्ड को, ग्रॉस रिसीव्स। ये सेक्शन काय पे है? सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब लाइबिलिटी, समझिएगा मतलब को, गुड्स के अगर हम गुड्स बेचते हैं तो हमको टीसीएस कलेक्ट करना है, लेकिन जब हम सेलर का मीनिंग देखते हैं तो वहां लिखा है टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीव्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस। ये बहुत ध्यान रखिएगा चीज, सेलर की मीनिंग में ध्यान रखिएगा। ग्रॉस रिसीव्स फ्रॉम द बिजनेस वर्ड यूज किया गया है। या आगे स्लाइड में कवर करेंगे बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं और मेरे पास कोई ज्वेलरी बेचने में ज्वेलर क्या जाता हूं और मैं 1 करोड़ की अपनी ज्वेलरी बेचता हूं ज्वेलर की शॉप पे जाके, तो मैं सेलर हूं, मैं 1 करोड़ में ज्वेलरी बेच रहा हूं, लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं। द मोमेंट आई एम नॉट डूइंग द बिजनेस, आई एम नॉट फॉलिंग अंडर सेक्शन 206C1H।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड का मीनिंग समझिएगा। सेलर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, यहां नहीं लिखा कि गुड्स की सेल नहीं लिखी, यहाँ लिखा है टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स 10 करोड़ फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर, अब यहाँ पे आप समझेंगे, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा था कि गाइडलाइंस का मतलब समझेंगे। अब आप अगर एक्ट देखेंगे तो वहां एक्ट में लिखा हुआ है टर्नओवर ऑफ द ईयर इन विच सेल हैज बीन डन। तो अगर हम एक्ट की वर्डिंग से चलेंगे तो मान लीजिए मैंने 2016-17 में सेल की, समझिएगा इंपॉर्टेंस, मैंने 2016-17 में कोई माल बेचा और उसका पैसा मुझे नवंबर 2020 में मिल रहा है। तो अगर हम एक्ट की वर्डिंग से चलेंगे तो वहां लिखा है टर्नओवर ऑफ द, टर्नओवर जो 10 करोड़ की टर्नओवर देखनी है हमको, वो कब देखनी है, जिस साल में सेल हुआ उसके पुराने साल में। तो मान लीजिए मेरा सेल 17-18 में हुआ और मेरा टर्नओवर 16-17 में मेरा 9 करोड़ था, तो मैं उस एक्ट की वर्डिंग के हिसाब से बाहर हो जाऊंगा, भले ही मेरा 19-20 में मेरा टर्नओवर 20 करोड़ है। समझ रहे हैं आप लोग? सो गाइडलाइन में चेंज कर दिया कि नो, टर्नओवर ऑफ द ईयर ऑफ सेल इज नॉट टू बी सीन बट इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इज टू बी सीन इन विच पेमेंट इज रिसीव्ड। अगर आप समझ पा रहे हो तो कितना वर्ड का कितना इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ड्राफ्टिंग में कुछ लिखा है, बाद में आके सही किया है गाइडलाइंस में। सोचिए आप किस लेवल का ड्राफ्टिंग में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सेलर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स 10 करोड़ फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर एज पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, audited financial statement should exceed 10 crores, then only, otherwise not applicable. तो अभी during the financial year, immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out, ये जो आखिरी की 3 लाइनें हैं, during the financial year, immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out. तो अब आप अगर इस 3 लाइन को इंटरप्रेट करोगे तो आप जिस साल में 16-17 का सेल है आप उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में इसको रेक्टिफाई कर दिया है। तो शॉर्ट में अगर हम समझें कि सेलर का मतलब क्या है, जिसकी रिसीप्ट्स 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ नहीं है, एक्सीडिंग 10 करोड़ लिखा हुआ है। मतलब मान लीजिए मैं अक्टूबर 2020 में कुछ पैसा रिसीव कर रहा हूं तो मेरे को 19-20 का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए एंड 10 करोड़ में टर्नओवर में मेरे को सर्विस भी आ गई। तो मान लीजिए मैं गुड्स भी सेल कर रहा हूँ, सर्विस भी दे रहा हूँ, तो रेंटल इनकम भी अर्न हो रही है। तो आई हैव टू सी द ग्रॉस रिसीप्ट्स एंड आई डोंट हैव टू सी ओनली गुड्स सेल, आई हैव टू सी द एंटायर रिसीप्ट्स। तो सबसे पहले हम देखें कि जो माल बेच रहा है वो 10 करोड़ से कम उसका सेल है या ज्यादा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। हम ऑडिट करेंगे तो पहला कंडीशन देखें कि हमारा सेलर का टर्नओवर कितना है। मोमेंट वो 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो हम जीएसटी के लिए, टीसीएस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आगे स्लाइड में कवर किया है लेकिन अभी डिस्कस करते जाता हूं कि बहुत कंफ्यूजन ये होता है कि कहीं जीएसटी इंक्लूडिंग है कहीं नहीं है। ये 10 करोड़ का फिगर जीएसटी इंक्लूडिंग नहीं है, ये आगे क्लैरिफाई किया हुआ है। सो हमको पुराने साल में देखना है 10 करोड़ से ऊपर हम आ रहे हैं क्या। अगर हम आ रहे हैं तो हम टीसीएस के लिए लायबल हैं। हमें बिजनेस करना जरूरी है, हर सेलर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं ज्वेलरी की दुकान में जाके अपनी ज्वेलरी बेचता हूं पर्सनल अकाउंट से तो मुझे टीसीएस नहीं करना है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन बायर। बायर मीन्स अ पर्सन हु परचेजेस एनी गुड्स, मतलब जो भी आदमी सामान खरीदता है, बट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लिगेशन कमीशन, सो एंड सो, लोकल अथॉरिटी और पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया। तो मतलब आप अगर जब गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको टीसीएस नहीं लगेगा। मतलब सेलर अगर बाहर का है और गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो तो टीसीएस नहीं है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टीसीएस नहीं है। तो बायर का मतलब वाइड है, ऑल द पर्सन्स आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बायर। ये 3 लोगों को इन्होंने एक्सक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सेलर, फिर बायर, फिर हमको बाकी चीजें देखनी है। तो अगर हमने मान लीजिए किसी गवर्नमेंट को भेजा है, जैसे मान लीजिए रेलवे को सप्लाई कर रहे हैं, तो रेलवे इन माय ओपिनियन इज अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इट इज नॉट अ। अब हम बीएचईएल को सप्लाई कर रहे हैं तो बीएचईएल तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, तो बीएचईएल बायर की डेफिनेशन में आ जाएगी।
लेकिन हम अगर गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बायर की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो भले ही मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी रिसीप्ट ज्यादा हो, मैं अगर गवर्नमेंट को बेच रहा हूं तो आपको टीसीएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बायर का मीनिंग डिफाइंड है डज नॉट इंक्लूड, और आपको टीसीएस में आने के लिए आपको सारी डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए। इसको अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो सेलर मींस पर्संस, ऑल पर्संस 231 में आ जाते हैं। एक्सक्लूजन क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करने का कहा गया है एक्ट में, अभी है नहीं नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो सेलर मींस ऑल पर्संस प्रोवाइडेड, जो अपनी कंडीशन है 10 करोड़ वाली और बिजनेस कर रहा हो और रिसिप्ट के ऊपर हो। और बायर के अंदर सब बायर है। एक्सक्लूजन क्या है? लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इंपोर्ट्स और नोटिफाइड पर्सन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम इसको रिपीट करें, 206C1H जो बात करते हैं कि टीसीएस कब कलेक्ट करना है? सेल ऑफ गुड्स पे कलेक्ट करना है। कब किसको करना है? सेलर को करना है। सेलर कौन हुआ? जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। कब ज्यादा हो? इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, जिस साल पैसा मिल रहा है, एंड उसका 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ग्रॉस रिसीप्ट देखना चाहिए, एंड ही शुड बी अ पर्सन। किसको माल बेच रहे हो? किसी को भी बेचो, इन 3-4 लोगों को नहीं बेचो। इंपोर्ट इसमें कवर्ड नहीं है, एक्सपोर्ट कवर नहीं है। टीसीएस का रेट क्या है? अब टीसीएस के रेट में आपको ध्यान रखना है कि पैन नंबर और आधार नंबर भी लिखा हुआ है वहां पे। तो पहली बात तो आपको अपने सबसे पहले देखना है कि जहां भी ऐसे केसेस हो उसका पैन नंबर ले लें, आधार नंबर ले लें। तो अगर पैन नंबर और आधार नंबर है तो उसका रेट हो जाएगा 0.1% ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख ऑफ रिसीप्ट्स। बट अभी जो कोविड के कारण से गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, उसमें 25% का गवर्नमेंट ने टीडीएस के रेट्स में रिलीफ दिया है। तो वो रिलीफ यहां भी एप्लीकेबल है। तो अब हमारा जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक के लिए हमारा रेट क्या होगा? 0.075%। प्लीज नोट 0.05%, and 1/4/2001 onwards it will be 0.1% of value exceeding 50 लाख of the receipts। तो हमको 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक के लिए हमारा टीसीएस का रेट होगा 0.075%, एंड 1 अप्रैल 2021 के बाद इट विल बी 0.1%। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा वो याद है कि 206 डबल जो सेक्शन है, जहां पे ये कहा गया है कि अगर आपको पैन नंबर आप नहीं फर्निश करते हो तो आपको टीडीएस और टीसीएस के लिए देयर इज सेक्शन 206CC, रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर बाय कलेक्टिव। तो उसमें क्या कहा गया है कि आप अगर टीसीएस नंबर नहीं देते हो तो आपको पैन नंबर नहीं देते हैं, अगर बायर पैन नंबर नहीं दे रहा है तो टीसीएस आपको ट्वाइस द रेट और 5% जो भी हायर है उतना आपको कलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ये 206CC को थोड़ा ओवरराइड कर दिया है और रेट कर दिया है 1% ऑफ द वैल्यू, मतलब 0.1 की जगह 1% कर दिया है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे 25% की छूट नहीं मिलेगी। प्लीज नोट, देयर वाज अ क्वेरी कि मान लीजिए मेरे पास, सामने वाले के पास पैन नंबर भी नहीं है और आधार नंबर भी नहीं है, तो मुझे रेट क्या है? 0.1% नहीं है, तो रेट मेरा है 1% of the value exceeding 50 lakhs of rupees, because 206CC के अंदर जो प्रोविजन था उसको इस सेक्शन ने ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे 206C1H के अंदर उस सेक्शन ने उसको ओवरराइड कर दिया है और आपको रेट जो है उसका 1% कर दिया है। 206CC को ओवरराइड किया इस सेक्शन ने, तो रेट को हम समझ गए 0.75% है, 0.075% इम्पैक्ट, मतलब अगर और 1% है 1 अप्रैल के बाद में और 0.1%, और अगर पैन नंबर और आधार नंबर नहीं देंगे तो 1% ऑफ द वैल्यू क्या है वो हम अभी बाद में समझेंगे। सो ये आगे देखेंगे इसको। ये बेसिकली दिस वाज, ये हमारा एक
1H के ऊपर मेन कंसेप्ट हमने देखे। एक ये स्लाइड इसलिए बनाई है कि 206C1 के अंदर ये बाकी जो रेट्स दिए हुए हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें टीसीएस का ये रेट डिफाइंड है। जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन 1%, तेंदुपत्ता 5%, फॉरेस्ट लीज 2.5, कार के लिए जो हम 1H की बात कर रहे थे 1%। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जो लिकर है इसमें कम नहीं हुआ है 25%, बाकी सब में हो गया है। तो जो 25% का रिलैक्सेशन मिला है वो लिकर पे नहीं मिला है, बाकी सब पे मिला है। तो ये सेक्शन इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस, ये स्लाइड इसलिए लिखी है क्योंकि जब हम 206C1H पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, उन गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो 206C1F और बाकी सेक्शन में जो कवर करते हैं उन पे 206C1H एप्लीकेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंगली वो क्या सेक्शन है, वो ये है। तो मान लीजिए हमने स्क्रैप का है, हमारा 1% टीसीएस है। अब हम अगर स्क्रैप में ऑलरेडी हैं कवर्ड, 206C1 में हम कवर्ड है, तो हमको अलग से 206C1H में नहीं आना पड़ेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू ये आ रहा था कि सपोज मैंने, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसने किसी से स्क्रैप खरीदा। अब स्क्रैप खरीदा तो वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले उसमें एक फॉर्म दे देते हैं कि हम इस स्क्रैप को मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस करने वाले हैं। तो वो बायर जो यहां से वो खरीदते हैं वो टीसीएस नहीं कलेक्ट करते हैं। तो आप जब जो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि मान लीजिए मैंने स्क्रैप तो खरीदा लेकिन मैंने वो फॉर्म दे दिया और मेरा टीसीएस तो आया ही नहीं, तो क्या मुझे 206C1H में आना पड़ेगा? इन माय कंसीडर्ड ओपिनियन नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप उस सेक्शन में फॉल कर रहे हैं। यहाँ मोटर व्हीकल से थोड़ा डिफरेंस हो गया। मोटर व्हीकल में क्या है, स्पेसिफिक गाइडलाइन आ गई है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाल दी है कि आप अगर वहां पे टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा है तो आपको 1H में आना पड़ेगा, लेकिन स्क्रैप वाले में ऐसा नहीं है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि 206C के अंदर अलग अलग सेक्शन है, सब सेक्शन 1 है, 1B है, 1C है, 1F है, 1G है और 1H जो अभी हमारा 1 अक्टूबर से आया है। तो 1 अक्टूबर से जो 1H आया है उसमें ये कहा गया है कि जो 1 सेक्शन पुराने सेक्शन में जो फॉल करते हैं वो अलग से उनको फिर टीसीएस इस सेक्शन में अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। सब सेक्शन 1, 1F और 1G ये 3 सेक्शन वहां लिखे गए हैं। 1 हो गया जिसमें ये अल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन, तेंदुपत्ता, फॉरेस्ट लीज आ गया। 1F हो गया हमारा मोटर व्हीकल का और 1G हो गया जो अभी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसमें कवर हो जाएगा। सो और ये जो मैंने आपको साइड में डिस्कस किया कि अगर पैन नंबर आप नहीं डिस्कस करते हैं तो रेट जो है वो बढ़ जाता है, ये इस सेक्शन के लिए है। यहाँ पे 206CC को ओवरराइड नहीं किया है, लेकिन जो हमारा 1H है वहां पे टीसीएस की जो ये 206CC है उसको ओवरराइड कर दिया गया है। और जो ये ऊपर का सेक्शन है लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये 1% में 25% जो कोविड की रिलीफ मिली है इसमें नहीं मिली है, बाकी सब जगह तेंदुपत्ता 5%, 2.5% सब जगह कोविड वाली रिलीफ मिली है। एक बेसिक अगर हम समझें कि फर्स्ट सी की आप जैसे अपन एक रोड मैप देखें कि हम कहाँ एप्लीकेबल हैं, क्या आप टीसीएस के लिए एप्लीकेबल हो, अगर हो तो आप बायर से टीसीएस कलेक्ट करो, फिर डिपॉजिट करो, उसके बाद रिटर्न फाइल करो एंड एज पर जो इनकम टैक्स से कंप्लायंसेस है वो फॉलो करने हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमने एक 206C1H को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि ये सेक्शन क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बहुत फास्ट इसको मैं रिव्यू कर लेता हूं, फिर हम क्या करेंगे कि हम ये जो जैसे कृष्णन सर बोल रहे थे शुरू में कि गाइडलाइंस आ गई हैं, उन्हें पढ़ी हैं, तो हम FAQs और गाइडलाइंस को पढ़ते जाएंगे तो उससे हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। Before I proceed to the FAQs and guidelines, I will just briefly brush up the provisions of 206C1H. 206C1H क्या सेक्शन है कि जहां पे आपने गुड्स का सेल किया, every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of any goods, seller
सेलर कौन होना चाहिए? सेलर मीन्स अ पर्सन जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो, 10 करोड़ की वर्किंग में जीएसटी नहीं आएगा, 10 करोड़ की वर्किंग में सारी रिसिप्ट आ जाएंगी, वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, उसने गुड्स बेचे बायर को, buyer suppose buyer is a person who is anyone except government नहीं होना चाहिए. The moment he has sold the goods to buyer and उससे सेल कितने भी रुपए का हो, 50 करोड़ का सेल कर दिया हो, पर अगर पैसा 50 लाख से ऊपर आएगा तो ही सेक्शन में टीसीएस एप्लीकेबल है. सो सेलर 10 करोड़ वाला लिमिट देखिए, बायर जिससे इंडिविजुअल बायर का देखना है, इन अ ईयर देखना है, और 50 लाख से ऊपर जहां पे पैसा आएगा वो हमें टीसीएस तब हमें करना है. कितना करना है? 0.1%. एंड कोविड के कारण से 25% की रिलीफ कर दी गई है, तो 0.075% रेट हो जाएगा. एंड 1 अप्रैल 2021 के बाद वो 1% हो जाएगा. पैन कार्ड और आधार कार्ड लेना जरूरी है. किसका पैन कार्ड आधार कार्ड? बायर का, सेलर का नहीं. बायर का पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, तो रेट 0.1% होगा. अगर बायर का आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो सेक्शन 206CC में मत जाइएगा. इसी सेक्शन ने उसको ओवरराइड कर दिया है और ये बोला गया है कि 1% आपको टीसीएस का रेट लगाना है. मान लीजिए नवंबर में आप 1% लगा रहे हैं तो आपको 25% की रिलीफ वहां पे नहीं देनी है. रिलीफ कहां देनी है? जहां नॉर्मल रेट एप्लीकेबल हो. तो मेरे हिसाब से मैंने ये 206C1H को एक ब्रीफ कर दिया है. अब सिंस ये जूम मीटिंग में समझ में नहीं आता कि ऑडियंस आई मीन लिसनर्स क्या मतलब, आई एम नॉट एबल टू मैच विद देम, बट आई अज्यूम कि आई एम क्लियर टिल हियर. Now we go with the FAQs. आखिरी लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तब समझ जाएंगे. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो क्या? थोड़ा सा लिंक नहीं हो पाया, थोड़ा समझ नहीं आता है कि नहीं सर, लास्ट में क्वेश्चंस आ जाएंगे. जी सर, जी सर. तो मतलब जूम में थोड़ा सा वो हो जाता है. एनीहाउ, सो आई एम नाउ ट्राइंग टू कवर द FAQs सो दैट हमको डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे. और FAQ जो सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर ही कितना कंफ्यूजन है. अब पहला क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले, मैंने कोशिश की कि जो मैंने सेक्शन डिस्कस किया था तो कुछ चीजें मैंने वहीं पे अपने आप कवर कर ली थी, ताकि यहाँ हमको डबल चेक हो जाएगा. ऑन विच अमाउंट टीसीएस टू बी कलेक्टेड बिफोर और आफ्टर, वेरी क्लियर. हमने पहले ही बात कर ली थी कि हमें इंक्लूडिंग जीएसटी कलेक्ट करना है. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने एक इनवॉइस का प्रोफार्मा यहाँ कॉपी किया है. ये एक्चुअल इनवॉइस है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की है, नाम छुपा के मैंने इसको उसमें कवर किया है. तो दिस इज बेसिकली सेल 2,84,250. अब कैश डिस्काउंट दिया है 2400 रुपए, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई 281,850. इसमें सीएसटी जीएसटी लग गया, टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 3,32,583. टीसीएस आ गया अंडर सेक्शन 206C1H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 249 एंड टोटल अमाउंट पेबल. अब मेरा यहाँ पे अपन इसको 3-4 चीजें यहाँ समझेंगे. देखिए टीसीएस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 206CH जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि टीसीएस एक बड़ा टीसीएस वाइड है, मतलब सेक्शन और भी हो सकते हैं. तो कई बार लोग डिस्कस करते हैं 20 हम टीसीएस लिख देते हैं. नहीं, टीसीएस में सेक्शन जरूर लिखिएगा, मेरा सजेशन है. अंडर सेक्शन 206C1H जरूर लिखिएगा. सेल अमाउंट जो हम ले रहे हैं, जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू बिफोर जीएसटी ले रहे हैं, ये क्लियर गाइडलाइन से बोला है. ये जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट मान लो हम उससे फ्रेट का पैसा ले रहे हैं तो वो भी जोड़ दीजिए यहाँ पे. जो भी पैसा हम बायर से रिकवर कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, सब प्लस माइनस कर लीजिए. आप कोई कंफ्यूजन लगाने नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है. सब प्लस माइनस करके जो नेट अमाउंट आ रहा है उसमें जीएसटी जोड़ दीजिए और उसके ऊपर टीसीएस चार्ज कर लीजिए. अब दो चीजें यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, जब अपन पढ़ते हैं तो चीजें आती जाती है दिमाग में. सो स्लाइड में तो सब चीजें कवर हो नहीं पाती हैं, बट बनाते बनाते दिमाग में एक चीज आई थी कि मैंने इनवॉइस तो रेज कर दी आज 249 रुपीज 0.075% से. अब ये इनवॉइस मैंने रेज की अक्टूबर में, मुझे पैसा मिलता है मान लीजिए जून 2021 में, तो मैंने इनवॉइस तो रेज कर दी 0.075% से और मुझे पैसा मिलेगा जून 2021 में.
तो जब मेरे को रेट क्या देना है, जब मुझे पैसा मिल रहा है उस समय का रेट लगाना है, तो मुझे रेट उस समय लगेगा 1%। तो ये पॉइंट जो 025% है, मुझे उससे और लेना पड़ेगा। तो हमेशा टीसीएस जब हम लिखे यहाँ पे, तो इसमें ये लिखे एट एप्लीकेबल रेट, मतलब आज का जो एप्लीकेबल रेट है ये वो रेट है। जून 2021 में मुझे मान लीजिए 0.25% और 0.25% और लेना पड़ा, तो मैं अलग से डेबिट नोट दूंगा, जो भी करूंगा, तो मैं अपने आप को बाइंड नहीं करूंगा। कल को वो बोलेगा आपने इतना टीसीएस चार्ज किया, मैं तो नहीं दे रहा। तो यहाँ एक लिख दीजिए वर्ड कि एट एप्लीकेबल रेट एट रेलिवेंट टाइम। सो फर्स्ट चीज, सेल के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, डिस्काउंट माइनस करना है, फ्रेट जोड़ दिया, लेना है, सारी चीजें प्लस माइनस कर दीजिए। रिपीटिंग अगेन, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। जीएसटी जोड़ दीजिए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जीएसटी जोड़ना है। मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारा डेविएशन फ्रॉम द रूटीन सेक्शन से है। जब हम टीडीएस काटते हैं तो हम जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटते हैं, लेकिन जब टीसीएस करेंगे तो हम जीएसटी पे टीसीएस करेंगे। नो कंफ्यूजन एट ऑल, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस जो भी पैसा हमको उससे मिल रहा है उसके ऊपर हमें टीसीएस काटना है। सेकेंड, ये कोई उसकी कॉस्टिंग तो है नहीं, ये तो केवल उसके बिहाफ पे पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको उस पर क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर हम जीएसटी पे भी काट लेंगे तो उससे कॉस्टिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लिक्विडिटी पे जरूर आएगा। सो हम इस एफएक्यू से लिंक करें कि टीसीएस हमें जीएसटी पे भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाता है इससे कि कौन सी वैल्यू पे कलेक्ट करना है और जीएसटी जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। रिप्लाई इज वेरी सिंपल, कहीं दिमाग लगाना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, सारी चीजें जोड़ लो। डिस्काउंट दिया है तो माइनस कर दो, फ्रेट है, कुछ भी पैसा ले रहे हो, पैकिंग चार्जेस ले रहे हो, फ्रेट ले रहे हो, सब जोड़ दो, जीएसटी जोड़ दो और उस पर लगा दो। टीसीएस जो लिखोगे तो उसमें आप लिखना कि हम बेसिकली इट इज एप्लीकेबल रेट, और सेक्शन जरूर लिख देना, क्योंकि टीसीएस अलग अलग सेक्शन में होता है। जैसे अभी हम मोटर व्हीकल की बात करेंगे तो मोटर व्हीकल में क्या होता है कि डीलर वर्सेस ऑटोमोबाइल। मान लीजिए मारुति कार का जो मारुति सुजुकी है वो डीलर को, मारुति सुजुकी डीलर को बेच रही है और डीलर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो जब मारुति सुजुकी डीलर को बेच रही है तो 206C1 G1F नहीं लगता है। डीलर कस्टमर को बेच रहा है तो 1F लगता है। डीलर कस्टमर को बेच रहा है और गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से ऊपर होगी तो 1F लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी की वैल्यू 6 लाख रुपए है तो नहीं लगेगा। अब मान लीजिए डीलर ने बेचा कस्टमर को और 12 गाड़ियां हैं 6-6 लाख की, तो वो सेक्शन तो लगेगा। तो हमको सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1H और 1F। तो ये हमारा 2-3 पॉइंट्स इससे हमारा क्लियर हो गया। हमेशा एप्लीकेबल रेट जरूर लिख दें, क्योंकि अगर हमारे को अप्रैल महीने पैसा मिला तो हमारा रेट चेंज हो सकता है। अब हमारा ये आ गया, ये हमारा क्लियर हो गया है। इंक्लूडिंग, हाँ, वेदर जीएसटी टू बी चार्ज बाय दी ऑन द अमाउंट सेल इंक्लूडिंग। तो अब यहाँ जो हमने बात की कि जीएसटी हमने किस पे चार्ज किया, टीसीएस छोड़ के किया हमने। टीसीएस पे हमें जीएसटी नहीं चार्ज करना है। कृष्णन सर ने जब शुरू किया तो शायद कुछ बोला था, मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोला था उन्होंने, बट इट इज वेरी क्लियर कि हम जीएसटी जब चार्ज करेंगे तो टीसीएस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है। और ये जीएसटी में भी सेक्शन 15(2) के अंदर ये लिखा हुआ है, बट टीसीएस का नहीं करना है, ये क्लैरिटी है। तो जो 15(2) सेक्शन में जो सप्लाई का वैल्यू वाला है वहां ये लिखा हुआ है शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, बट इट इज क्लैरिफाइड इन बोथ द सेक्शन, बोथ द एक्ट्स। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, कृष्णन सर, संदीप मुखर्जी साहब, नवनीत जी, ये लोग इस बारे में बाद में और डिस्कस कर लेंगे एफएक्यू में। अपन ये जीएसटी पे अपने को टीसीएस पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है, ये अपन क्लियर है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर है, और ये अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना तो हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, जब गवर्नमेंट ये सेक्शन लेके आई थी पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर पूरे के लिए एप्लीकेबल था।
जब फाइनेंस एक्ट 2020 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दिस सेक्शन वाज एप्लीकेबल फॉर दी होल फाइनेंशियल ईयर। तो किसी ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि भाई, उन्होंने सिंपल लिख दिया कि 50 लाख तक हम छूट दे देंगे आपको, 50 लाख से ऊपर की छूट नहीं मिलेगी। मतलब उन्होंने अब लॉ बनाया, सिंपल लिख दिया कि भाई अगर आपको 50 लाख से ऊपर पैसा मिल रहा है तो आप टीसीएस चार्ज करना, नहीं मिल रहा है तो मत करना। अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ गया, वो बढ़ा दिया उन्होंने एप्लीकेबिलिटी। कब बढ़ा दी? 1 अक्टूबर बढ़ा दी। अब एप्लीकेबिलिटी जब 1 अक्टूबर बढ़ा दी तो कंफ्यूजन क्या हो गया कि ये 50 लाख की लिमिट हम कौन सी लें। इसके पीछे सीरीज ऑफ कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन, एंड आज भी अपन लोग कंफ्यूज रहेंगे, मैं भी इसके अंदर बनाते बनाते। लेकिन जो मैंने कंसेप्ट समझा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अपन इसको और बाद में क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे। कंसेप्ट ये है कि अगर हमको पहले समझिएगा बात को, एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे हम, ये एग्जाम्पल है हमारा, हम एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमारा 50 लाख से, हमको ये कंसेप्ट सेक्शन क्या बोलते हैं कि अगर बायर से मुझे 50 लाख से ऊपर पैसा मिल रहा है, what the word used is consideration received is exceeding 50 lakhs. If the consideration is not exceeding 50 lakhs, then no liability of TCS. यहाँ तक बहुत क्लियर है। अब 50 लाख गिनना कैसे है, क्यों कंफ्यूजन आ रहा है? क्योंकि सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है 1 अक्टूबर से। अगर सेक्शन हमारा 1 अप्रैल से होता तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। तो अब ये बड़ी क्लियर है कि हमारे को एक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा यहाँ पे। 1 अक्टूबर के पहले अगर पैसा मिला तो हमें टीसीएस नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। मान लीजिए मुझे 30 सितंबर तक 1 करोड़ रुपए मिलता है तो मुझे टीसीएस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन एप्लीकेबल होता है 1 अक्टूबर 2020 के बाद से। तो अब मैं 50 लाख अगर मुझे 1 अक्टूबर के पहले मिल गए, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है, एप्लीकेबल नहीं हूं मैं। अब आती है बात, मुझे 1 अक्टूबर के बाद पैसे मिलते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन शुरू होता है कि मुझे पुराना जोड़ना है, नया जोड़ना है, क्या करना है। अगर आप समझ सकते हो कि हम किस कंफ्यूजन पे बढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा, जो मैं 2-3 क्वेश्चंस जो एफएक्यूज में भी थे और इसमें भी थे, उसको समराइज करें कि अप टू 30 सितंबर, 1 मिनट, इसमें क्या है कि हमें क्या करना चाहिए। सिंपल कंसेप्ट ये निकालना चाहिए कि हमारी 30 सितंबर तक की सेल 35 लाख रुपए है। सेल्स अप टू 30 सितंबर 35 लाख रुपए, अमाउंट रिसीव्ड अप टू 30 सितंबर 25 लाख रुपए, एंड इनवॉइसेस रेज्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 30 लाख रुपए। मतलब क्या हुआ, हमारी सेल थी 30 सितंबर तक 35 लाख रुपए, हमको पैसा मिला था 30 सितंबर तक 25 लाख रुपए का, और हमने 1 अक्टूबर के बाद सेल की 30 लाख रुपए। कुछ मत कीजिए, पहले पूरे साल की वर्किंग कर लीजिए, 35 लाख जोड़ लीजिए और 30 लाख जोड़ लीजिए। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसको हम रिपीट करेंगे 2-3 बार, क्योंकि ये हमारा क्रक्स है, समझने का क्रक्स यही है। 35 लाख और 30 लाख आप पूरे साल की पहले सेल जोड़ लीजिए, क्योंकि टीसीएस कब लगता है? रिसीप्ट पे लगता है, सेल पे लगता ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। 35 एंड 30 हमने जोड़ लिया। अब हमको क्या मिला है? हमको 35 एंड 30 जोड़ा 60 हो गया, हमारा 65 हो गया, करेक्ट। अब हमको मिला 25 लाख है, तो ठीक है 25 लाख मिल गया, तो 25 लाख हमको पहले मिला है, तो उस पर तो हमको टीसीएस है ही नहीं, क्योंकि 30 सितंबर पे आ गया। अब हमको क्या करना है कि हमको 50 लाख की छूट मिलेगी टोटल, ये क्लैरिफाई कर दिया एफएक्यू ने। अब वो 50 लाख आपको पहले मिले बाद में मिले, दिमाग नो नथिंग टू बी, नो कंफ्यूजन यू हैव टू अप्लाई। यू हैव टू सिंपली सी कि टोटल सेल निकालो, उसमें से आप 50 लाख की जो डिडक्शन छूट है आपको वो माइनस कर दो। अब आपको जब 15 लाख मिल जाता है तब आपको टीसीएस लगेगा। इस केस में क्या है, आपको 25 लाख मिला हुआ है पहले, तो अब डिफरेंस अमाउंट जब मिलेगा 15 लाख रुपए, तो आपको टीसीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। पॉइंट यहां पर यह है कि आपको बेसिकली जो लिमिट बेकार हो रही है पुरानी वाली, 50 लाख की लिमिट आपको है। अब 50 लाख पहले मिल जाए नहीं मिले वो लीस्ट कंसर्न, 50 लाख की छूट मिलेगी आपको। तो कंसेप्ट ये रखिए कि पूरे साल की सेल जोड़ लीजिए, उसमें से 50 लाख माइनस कर दीजिए, क्योंकि 50 लाख की, मान लीजिए यहाँ पे फिगर आता है हमारा टोटल सेल आती है 45 लाख रुपए की, तो हमारा टीसीएस का चक्कर ही नहीं है। और आगे एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या है, 30 सितंबर तक की सेल है 65 लाख रुपए, हमको मिल चुका है 30 लाख रुपए, हमने बाद में रेस किया 20 लाख रुपए। अब हमारा क्या कंसेप्ट हुआ कि जो मैंने लास्ट लाइन देखिएगा,
35 लाख रुपए पे टीसीएस आएगा। क्यों आएगा? 65 लाख की सेल पुरानी वाली जोड़िए, 20 लाख की सेल जोड़िए 1 अक्टूबर के बाद, कितना हो गया? 85। 50 लाख की छूट दे दीजिए, कितना हुआ? 35 लाख। द मोमेंट 35 लाख आता है तो इट इज लायबल टू जीएसटी। सो अब कंफ्यूजन नहीं है, आपको वहां मिला कितना? 30 लाख रुपए। सितंबर के पहले कितना मिला? 30 लाख रुपए। लेकिन वर्किंग कैसे करनी है? ऐसे करनी है। इसको अपन और अभी एग्जांपल से समझेंगे आगे, इसमें एकदम से कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखिए कि 50 लाख की लिमिट पूरे साल के लिए है। जो पैसा हमको पुराना मिल गया है वो भी उससे माइनस हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। हमको 50 लाख की रिबेट टोटल मिलेगी। पूरे साल का जितना सेल है वो जोड़ लीजिए। पुराने साल में अगर हमको मतलब अक्टूबर के पहले हमको 50 लाख से ऊपर पैसा मिल चुका है, उस पर हमको टीसीएस नहीं देना है। पर अगर हमको 50 लाख से ऊपर मिल चुका है तो हमारी रिलीफ खत्म हो जाएगी 50 लाख की। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया? 35 लाख और 30 लाख को जोड़ा, 25 लाख हमारा हो गया 35 प्लस 30 65 और 50 लाख की लिमिट माइनस कर दी। सेकंड एग्जांपल में क्या किया? हमने सेल जोड़ी 65 और 20 लाख जो हमारी पूरे साल की सेल है, सेल हो गई हमारी 85 लाख, 50 लाख हमने माइनस किया और 35 लाख में हमारा टीसीएस हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या है कि हमारा सेल हुई 65 लाख 30 सितंबर तक, हमको 55 लाख मिला और हमने 20 लाख रुपए की बाद में सेल की। तो 65 प्लस 20, 65 प्लस 20 कितना हुआ? 85 माइनस 55। ये इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ माइनस 55 कर दिया हमने क्योंकि हमको 55 मिल चुका है। तो 85 माइनस 55 इज 85 माइनस 55 इज 30 लाख। तो 30 लाख पे हमको वी हैव टू पे टीसीएस। सो कंसेप्ट इज कि जो हमारा सेल है पूरे साल का वो हमने जोड़ दिया, उसमें से 50 लाख माइनस कर दिया। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां हमको कम पैसा मिला, फर्स्ट एंड सेकंड इलस्ट्रेशन में हमको पैसा 50 लाख से कम मिला, तो हमने पूरा पैसा माइनस किया 50 लाख। हमको थर्ड इलस्ट्रेशन में 50 लाख से ऊपर मिला तो हम जितना ऊपर मिला पूरा माइनस कर देंगे। हमको डिफरेंस अमाउंट पे ही अब पूरा हमको अमाउंट पे टैक्स देना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। यहाँ हमने 50 लाख की रिबेट दे दी, उसको 50 लाख की रिबेट मिल दी है, पुराने में मिला हो या नहीं मिला हो, मिल गया हो तो वेल एंड गुड, लेकिन 50 लाख की रिबेट उसको पूरे साल के लिए कंसिडर करनी है। तो ये एक इशू था कि हमने अभी इशू देखे, जीएसटी टीसीएस जो है जीएसटी पे लगेगा, जीएसटी टीसीएस पे नहीं लगेगा। और हमने देखा कि 50 लाख की लिमिट देखी, 50 लाख की लिमिट के लिए क्या कहा गया है? पूरे साल की लिमिट देखनी है आपको, पूरे साल की सेल जोड़ लीजिए। अगर पैसा ज्यादा मिल गया आपको, जैसे इलस्ट्रेशन 3 में आपको पैसा 55 लाख मिल गया है, तो जितना मिल गया माइनस करके फिर कोई 50 लाख की छूट नहीं मिलेगी, उसको 55 लाख में छूट मिल गई, 50 लाख की छूट तो उसको वहां मिल गई और 5 लाख उसको अक्टूबर के पहले मिलने की छूट मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि सेक्शन 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हुआ है। अब अपन आ गए और एफएक्यूज में। ये एफएक्यू मैंने कवर कर लिया है, वेदर द कंसिडरेशन अमाउंट, ये एफओबी और सीआईएफ तो हमने बात कर ली, इट वुड डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन विल इंक्लूड इंश्योरेंस एंड फ्रेट। व्हाट आई सेड इन द इनवॉइस कि जो भी पैसा मिला, यहाँ पे मैंने बात की थी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो भी पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस का मिले किसी का भी मिले, सब पे टैक्स देना है। जो हम उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं सब पे टैक्स देना है। अब हमारा आ गया 10 करोड़ रुपए। ये भी हमने उस समय बात कर ली थी, मैंने उस समय आपको जब सेक्शन में डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये आपको इस चीज का आंसर वहां पे, मतलब आंसर कह ले या डिस्कशन मैंने कर लिया था कि जो वर्ड यूज किया है सेलर के अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, क्या सेल में सर्विसेज इंक्लूडेड है? यस, बिकॉज द सेक्शन प्रोवाइड्स ग्रॉस रिसीप्ट्स। सेक्शन वर्ड क्या यूज करते हैं? ग्रॉस रिसीप्ट्स। इट डजंट यूज द वर्ड सेल, इट सेज ग्रॉस रिसीप्ट्स एंड टर्नओवर। तो हमारा जो 10 करोड़ की लिमिट देखनी है हमको, 10 करोड़ की लिमिट की इंपॉर्टेंस क्या है? सेलर से इंपॉर्टेंट है। जो माल बेच रहा है, जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है, वो अगर 10 करोड़ से ऊपर की सेल करता है तो ही टीसीएस 206C1H में एप्लीकेबल है। अगर सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो भले ही वो परचेजर से 50 लाख से ऊपर का माल बेच रहा है, टीसीएस एप्लीकेबल
नहीं है। सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो 206C1H एप्लीकेबल नहीं है। और टर्नओवर का मतलब क्या? टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स। When the word gross receipts is defined, इसका मतलब कि सेल ऑफ सर्विसेज भी उसमें कवर्ड है। Whether TCS shall be collected at the time of debiting the buyer with the sale or at the time of collection, ये सभी लोग जानते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। एक्ट में लिखा हुआ है at the time the consideration is received। ये भी चीज हमने जब हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे थे तभी मैंने ये चीज आपको क्लियर की थी कि ये डिपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल कंसेप्ट है, जहां टीडीएस में कहा गया है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दिस सेक्शन देयर इज नो, दिस इज डिफरेंट। आप इनवॉइस रेज कर दो, टीसीएस नहीं आएगा। टीसीएस कब आएगा? जब आप पैसा कलेक्ट करोगे। आप अक्टूबर में इनवॉइस रेज कर रहे हो, दिसंबर में कलेक्ट कर रहे हो, तो दिसंबर के महीने में जनवरी 7 तारीख तक आपको टीसीएस जमा करना है। अक्टूबर में इनवॉइस रेज की, जून 2021 में आपने को पैसा आया तो जून 2021 का पैसा जुलाई 7 के पहले जमा करना है और रेट भी चेंज हो जाएगा। तो पैसा जब आ रहा है तब हमको ये टीसीएस की लायबिलिटी आएगी। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ये हाइड हो रहा है इससे, ये इससे हाइड हो रहा है। सेल ये एग्जांपल हम रिपीट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, है तो सब वही चीजें, 3-4 बार अलग अलग कर दिया ताकि हमारा ब्रश अप हो जाएगा। सेल हमारी 1920 फाइनेंशियल ईयर में सेल थी 60 लाख। इसका ये एग्जांपल इसलिए कवर किया है कि कई बार क्वेश्चन होता है कि हमारी पुरानी सेल पे भी टीसीएस है क्या, इसलिए ये क्वेश्चन कवर किया है कि हाँ टीसीएस हमारा रिसीप्ट बेसिस पे है, कभी भी पैसा मिले उस साल में है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि एक्ट हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ था सेल 10 करोड़ की सेल कब देखनी है? इन द ईयर सेल इज डन। तो अगर उस कंसेप्ट से आ जाएंगे तो हमको जिस साल की सेल है वहां देखनी पड़ती है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट आ गया कि हमको बाद की सेल देखनी है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, सेल हमारी 60 लाख की है, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, टोटल हमारे को 20 लाख मिले, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा 40 लाख था। तो इस साल तो 1920 में हमारा टीसीएस कुछ था ही नहीं, तो हमारा टीसीएस कितना आ गया? 0। नोट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2020 से आया है, तो हमारे को फाइनेंशियल ईयर 1920 में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। अब ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो हमारा 40 लाख है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया 2021 का, कॉलम नंबर 2। सेल कितनी की हमने? 70 लाख, 40 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस था, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। मिला कितना हमको? 1 करोड़। आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 लाख। अब हमको मिला कितना? 2021 में हमें कितना मिला? 1 करोड़ रुपए मिला। 1 करोड़ में से कितना लिखा है कि हमको 55 लाख कितना मिल गया? 30 सितंबर के पहले मिल गया। तो हमारे को कितना मिला इस साल? अक्टूबर में कितना मिला? 45 लाख। तो टीसीएस कितना आएगा? 0.01% ऑफ 45 लाख। एम आई क्लियर? 1920 में कुछ नहीं आएगा, टीसीएस 0 हो गया। 1920 का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 40 लाख, वो 70 लाख हमारी 2021 की सेल है। कोई सी भी पीरियड की सेल हो, अप्रैल अक्टूबर के पहले की हो, अक्टूबर की बाद की हो, डजंट मैटर। अगर सितंबर की भी है और नवंबर की भी है, डजंट मैटर। सेल इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिसीप्ट। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा आ गया 40 लाख, सेल हो गई 70 लाख, टोटल हमको उससे लेना है 1 करोड़ 10 लाख रुपए, हमको मिला 1 करोड़ रुपए, आउटस्टैंडिंग है 10 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए के ऊपर हमको टीसीएस की लायबिलिटी आएगी, लेकिन हमको इस साल में बाइफिकेट करना है कि 30 सितंबर के पहले का कितना है? 55 लाख है। हमने इस एग्जांपल में देखा था कि अगर 55 लाख है तो हमको 55 लाख माइनस करना है। इस एग्जांपल में हमने देखा था थर्ड में, जो मिल गया वो माइनस करना है। तो इसी केस में हमारा 55 लाख हमको पहले मिल गया, तो हमने 55 लाख माइनस करके 45 लाख पे टीसीएस ले लिया। 50 लाख की छूट अलग से नहीं मिलेगी, 50 लाख की छूट अलग से नहीं मिलेगी। 50 लाख की छूट पूरे साल के लिए ऑलरेडी मिल चुकी है। तो 1 करोड़ में से हमने 55 लाख माइनस करके 45 लाख पे टीसीएस हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम आ गए, ये 10 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। 21-22 में हमको 55 लाख की हमने सेल की, हमारा सेल कितना हो गया? 65 लाख रुपए।
65 लाख में से हमको रिसीव कितना हुआ 45 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग कितना है 20 लाख रुपए। अब हमारा ये 45 लाख 50 लाख से कम है, तो हमारा टीसीएस कितना हो गया, 0 हो गया। 20 लाख अगली बार ओपनिंग में गया, 55 लाख की सेल है, 20 लाख ओपनिंग है, 75 लाख हो गया। 75 में से हमारा 10 आउटस्टैंडिंग है, 65 लाख मिला। 65 में से क्या करेंगे, 50 लाख की छूट दे देंगे, 15 लाख पे 0.1%, 0.0% टीसीएस आ जाएगा। I think it is a perfect example to understand the concept of TCS. Very fast repeating again. 60 लाख की सेल है, हमने रिसीव हुआ 20 लाख, आउटस्टैंडिंग 40 लाख। इस साल में टीसीएस नहीं है, 40 ओपनिंग आ गया, सेल हुई 70 लाख की, 1 करोड़ 10 लाख का 20-21 का आउटस्टैंडिंग हो गया, 10 लाख हमको मिल बचा हुआ है, 1 करोड़ रुपए मिला। 1 करोड़ में से 55 लाख हमारा 30 सितंबर के पहले का है, तो 50 लाख की छूट मिल गई। 45 लाख के ऊपर 0.01% से 4,500 रुपए टीसीएस आ गया। 10 लाख ओपनिंग आया, 55 लाख की सेल, 65 लाख रुपए हो गया। 20 लाख आउटस्टैंडिंग है, 45 लाख मिला हमको 21-22 में। 45 लाख 50 लाख से कम है, यहाँ सितंबर अक्टूबर का कोई वेरिएशन करना नहीं है, आपको पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है। 50 लाख से कम है, नो टीसीएस। 20 लाख ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड हुआ, 55 लाख की सेल हुई, 75 लाख माइनस 10 लाख हमारा आउटस्टैंडिंग है, 65 लाख हमको मिला है। 65 लाख के ऊपर 50 लाख की छूट देके, मतलब 65 लाख के ऊपर पूरे पे नहीं करना है हमको, 50 लाख की छूट देनी है। इस कंसेप्ट को भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 65 लाख हुआ तो ये नहीं कि हम 50 से ऊपर आए तो हमको पूरे पे दे देना है। 65 लाख की सेल है तो 50 लाख की छूट मिलने के बाद 15 लाख के ऊपर ही 0.01% हमको टीसीएस आएगा। अपन एक क्वेश्चन ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या एडवांस पेमेंट पे टीसीएस आएगा? आंसर इज यस। क्यों यस? क्योंकि वहां वर्ड लिखा है ऑन दी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अब कंसिडरेशन मतलब कि पैसा आना चाहिए, वो एडवांस में आए या बाद में आए। एडवांस आ गया तो भी टीसीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। जैसा यहाँ पे कंसेप्ट सेम कर दिया टीडीएस जैसे टीडीएस में भी कहा गया है कि आप अगर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे भी क्या है कि क्रेडिट वाला वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ कंसिडरेशन की बात की गई है। तो मोमेंट कंसिडरेशन हमको एडवांस में भी आ गया तो भी हम टीसीएस के लिए लायबल हैं। अब एक कनेक्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए उसने हमें एडवांस दिया और मान लीजिए उसने हमको 1 करोड़ रुपए का एडवांस दिया, तो हम क्या करेंगे, 50 लाख की छूट दे देंगे उसको और 50 लाख के ऊपर 0.01% टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए उसने हमें अक्टूबर में एडवांस दिया और जनवरी में उसने भाई हमको तो ये कैंसिल कर दीजिए, हम तो ये एडवांस हमें मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। अब आपको उसको एडवांस वापस करना है, तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपको टीसीएस भी वापस करना है? तो क्लियर आ गया कि नहीं करना है, आपको सिर्फ एडवांस वापस करना है। जो टीसीएस आपने उससे कलेक्ट करके जमा कर दिया है, दैट यू डोंट हैव टू रिफंड एनी मोर। एम आई क्लियर? टीसीएस एडवांस पे कलेक्ट करना है। एडवांस अगर आगे मटेरियलाइज हो जाता है तो वेल एंड गुड, किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलता है तो आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है उसमें केवल एडवांस का अमाउंट वापस करना है, लेकिन जो टीसीएस का अमाउंट है वो उसके अकाउंट में रिकवर करके आप जमा कर दीजिए। और मान लीजिए उसने आपको टीसीएस नहीं दिया हुआ है तो रिवर्स वर्किंग करके निकाल लीजिए और उसको बिना टीसीएस वापस किए डिफरेंस अमाउंट वापस कर दीजिए। तो रिपीट करने के लिए, एडवांस अगर पेमेंट कर रहे हैं तो टीसीएस है, और अगर कैंसिल हो जाता है तो हमने जो बायर से टीसीएस कलेक्ट किया है वो हमें उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। हाउ एंड व्हेन टू चार्ज टीसीएस फ्रॉम बायर्स, इसमें मैं एक्सपर्ट्स कृष्णन सर, संदीप भी दिख रहे हैं इसमें, नवनीत अगर हो तो इसमें थोड़ा सा उनका व्यू लेना चाहूंगा, भले बाद में ले लीजिएगा एफएक्यूज के समय। इसमें अब क्या इशू बनता है, हाउ एंड व्हेन टू चार्ज टीसीएस फ्रॉम बायर। अब क्या होता है कि इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि टीसीएस हम जब बात कर रहे हैं, 2 इशू बनते हैं। एक इशू बनता है कि जब हमने पहले एग्जांपल में देखा था, हमने इनवॉइस रेज की, वहीं पे हमने टीसीएस चार्ज कर लिया। और सेकंड ऑप्शन ये निकल के आ रहा है कि हम इनवॉइस में चार्ज ना करें, जब हमें पैसा मिल जाए तो उसको हम एक डेबिट नोट दे दें टीसीएस का। कृष्ण सर बाद में डिस्कस करेंगे इस पे, आप बाद में कर लेंगे हम। यस सर। तो पॉइंट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपन लोगों के लिए। तो इससे क्या होता है कि, लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारी अकाउंटिंग एंट्री में हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इसको। पर ठीक है, हम इस चीज को आखिरी के 5 मिनट के लिए इसको इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो अभी पॉइंट क्या आ रहा है, हाउ एंड व्हेन टू चार्ज। तो कंसेप्ट इज क्लियर, द मोमेंट यू इशू इनवॉइस आप उसको टीसीएस चार्ज कर लो, हमने उस इनवॉइस के परफॉर्मेंस में देखा हुआ है।
अब हमारा एक ऑप्शन ये भी है कि हम टीसीएस इनवॉइस रेज कर रहे हैं, टीसीएस चार्ज ना करें, और जब पैसा मिले तो हम उसको डेबिट नोट दे दें। इन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मृदुल सर कुछ बोल रहे थे ई-वे बिल का भी, तो अपन वो बाद में देखेंगे उसको। अब अपन आगे, ये जो मैं आपको ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, इसको फिर से रिपीट ना करते हुए शॉर्ट में समझा देता हूं कि जो टीसीएस हमने मोटर व्हीकल की बात की थी, टीसीएस सेक्शन 1F में जो 1F सेक्शन है 206C का, वो बात करते हैं कि जो हम गाड़ी बेचते हैं तो हमको टीसीएस लगता है 10 लाख से ऊपर की व्हीकल हम सेल करेंगे तो जो डीलर है वो कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो मारुति सुजुकी जो ओनर है, जो सप्लायर है मारुति गाड़ी का, वो भी गाड़ी हो हुंडई XYZ, तो वो जो अपने ऑटोमोबाइल डीलर को गाड़ी बेचेंगी तो उस पे 206C1F एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लस अगर 10 लाख से कम की लिमिट है तो 206C1F एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब इसमें तीन चीजें बहुत शॉर्ट में फिर से फास्ट रश अप कर देते हैं कि अगर हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है गुड्स covered under section 206C1F are not liable to be have TCS under 206C1H। बट कवर्ड का मतलब ये नहीं, तो बाद में क्लैरिफाई कर दिया कि कवर्ड नहीं, अगर वहां TCS जमा कर रहे हैं तो ही उनको छूट मिलेगी। अगर वहां 206C1F में TCS जमा नहीं कर रहे हैं तो उनको TCS 206C1H में आना पड़ेगा। तो जैसे मैंने रिपीट किया 4-5 बार कि गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से कम है लेकिन एज अ होल 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो 206C1H आ जाएगा। एट द सेम टाइम जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने डीलर को जब करेगी तो वहां पे 206C1H एप्लीकेबल हो जाएगा, इवन दो वो 206C1F में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी कम टू, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड में आता है कि क्या प्रॉपर्टी जो हम सेल करते हैं वहां पे टीसीएस है क्या, वेदर टीसीएस टू बी कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ डेवलपर, द आंसर इज नो, बिकॉज गुड्स हमारा ये काय पे एप्लीकेबल है, सेल ऑफ गुड्स पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सेलर की वर्किंग के लिए हमको 10 करोड़ में गुड्स नहीं देखना है, सेलर की सेल 10 करोड़ से ऊपर हो वहां गुड्स नहीं देखना है, वहां ग्रॉस रिसीप्ट्स टर्नओवर देखना है। लेकिन जो गुड्स की डेफिनेशन है, यहाँ गुड्स में गुड्स बेसिकली डजंट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो व्हेन गुड्स डजंट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस आपका जो डेवलपर है हो गया, when the I repeat, immovable property जो होती है that is not covered in the definition of goods. Goods means every kind of movable property subject to certain exceptions and inclusions. Thus immovable property shall not be treated as goods. Consequently, the TCS shall not be collected from the sale of immovable property by a developer. तो हम अगर उसके हम क्यों, हमें मालूम होना चाहिए हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कंसेप्चुअली क्लियर है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कवर्ड नहीं है, बट बेसिकली गुड्स में आती नहीं है इसलिए कवर्ड नहीं है। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत शॉर्ट में कंसेप्ट क्लियर करता हूं। इसमें दो चीजें अपने को सीखने मिलेंगी। वेदर टीसीएस इज लायबल टू बी कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ ज्वेलरी बाय अ ज्वेलर। नाउ क्या था, सेक्शन 206C1D में एक सेक्शन था जो 2016-17 में खत्म हो गया था। इस सेक्शन में क्या था कि अगर हम ज्वेलर्स को क्या था कि इस सेक्शन में 206C1D में ज्वेलर्स को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था कस्टमर से, लेकिन वो सेक्शन खत्म कर दिया था। क्यों खत्म कर दिया था कि 269ST में कहा गया था कि अगर 2 लाख से ऊपर कैश रिसीव करते हो तो 100% पेनल्टी है। तो जब वो सेक्शन आ गया तो इस सेक्शन का पर्पस खत्म हो गया था। तो 16-17 फाइनेंशियल ईयर में ये जो सेक्शन आया था जो बाद में खत्म कर दिया था 17 फाइनेंस एक्ट 2017 से, तो उसमें कहा गया था कि ज्वेलर्स लोगों को जब वो ज्वेलरी सेल करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट तो उनको 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। अब वो सेक्शन खत्म हो गया तो कई बार लोगों में डाउट आता है कि भाई 206C1D था तो ये नहीं लगेगा। तो अब बड़ा क्लियर रख लीजिए कि जो ये सेक्शन 206C1G है इसमें 3 सेक्शन दिए गए जहां कवर्ड नहीं है, और वो सेक्शन है 1F और 1G। तो 1D सेक्शन वहां कवर्ड नहीं है, तो जब वहां कवर्ड नहीं है तो ये सेक्शन यहां आ जाएगा। और ज्वेलरी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। जब ज्वेलरी फॉल्स अंडर डेफिनेशन ऑफ गुड्स मींस आपको अगर किसी ज्वेलर ने
किसी पर्टिकुलर पर्सन को 50 लाख से ऊपर की ज्वेलरी बेची तो कैश में तो वो बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 269 ST में 2 लाख से ऊपर का बेच ही नहीं सकता कैश में। तो किसी ज्वेलर ने किसी को सम पर्सन उसके अपने कस्टमर को 50 लाख से ऊपर की ज्वेलरी सेल करेगा तो ही इज लायबल टू कलेक्ट TCS फ्रॉम दी बायर। सेलर का मतलब क्या है? बिजनेस जो कर रहा है 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है ज्वेलर, तो ज्वेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो उसे कलेक्ट करना है। बायर मींस एनी पर्सन, इंडिविजुअली आल्सो बायर। बायर की डेफिनेशन हमने चेक की हुई है। बायर मींस एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, काउंसिलेट्स, local authority or anybody notified. तो buyer means individual person is a buyer. तो ज्वेलर को ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अब उल्टा देखें हम, क्या TCS लायबल है फ्रॉम रीसेल ऑफ गुड्स? उल्टा कैसे देखेंगे? मान लीजिए किसी की कार है, वो किसी को सेकंड हैंड कार सेल कर रहा है, कोई इंडिविजुअल आदमी है, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स हैं, अपनी कार सेल कर रहे हैं मान लीजिए, एंड सपोज 50 लाख से ऊपर, डिफिकल्ट टू से कि कार 50 लाख से ऊपर पुरानी वाली, लेकिन ठीक है एग्जांपल ले लेते हैं। तो कार हमारी 50 लाख से ऊपर की हमने सेल की, तो क्या हमें TCS लगेगा? सिमिलरली मान लीजिए मैं कोई ज्वेलरी बेची, किसी इंडिविजुअल आदमी ने XYZ ने कोई उसने ज्वेलरी बेची ज्वेलर को 1 करोड़ रुपए की, क्या TCS लगेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने डिफाइन किया है सेक्शन में, सेलर का मीनिंग डिफाइंड है। Seller means a person whose total sales, gross receipt or turnover from the business carried on by him. तो जब अगर मैं अपनी ज्वेलरी सेल करने जा रहा हूं किसी ज्वेलर के यहाँ, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस के कोर्स में ये ज्वेलरी सेल नहीं कर रहा हूं। इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल ज्वेलरी बेचने जाएगा तो उसको TCS कलेक्ट नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे GST में क्या होता है कि पैन नंबर तो एक होता है, लेकिन आप 2-3 GST नंबर ले लेते हो। आपका एक ही, आप कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह में आपने 3 नंबर ले लिए GST के। तो या अपन इंटर ब्रांच ट्रांसफर की बात कर लें कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सेल कर रही है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि क्या हमें ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, क्या उस पर TCS है? द आंसर इज नो, बिकॉज the existence of two distinct persons as seller and buyer is a prerequisite to constitute as a transaction of a sale. तो हमारा आंसर ये है कि अगर पैन नंबर हमारा एक है तो भले ही हमारे 2-3 नंबर हो, GST नंबर हमारे अलग अलग हो, तो हमको वहां पे TCS नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि A ब्रांच B ब्रांच से कलेक्ट करेगी और ये करेगी, नो। पैन नंबर एक है तो आप TCS के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, भले ही GST नंबर आपने 5 लेके रखे हो एक ही एंटिटी के और उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा हो। ऐसे ही ये कहा गया है कि वेदर इफ ए बायर हैज मल्टीपल यूनिट्स, वेदर सेल्स मेड टू डिफरेंट यूनिट्स नीड्स टू बी एग्रीगेटेड। मान लीजिए बायर के मल्टीपल यूनिट्स हैं, ठीक है ना जी, तो बायर, मान लीजिए बायर के 5 यूनिट्स हैं, एग्जांपल के लिए, उसी एग्जांपल के लिए आपने, एक बायर ने 5 GST नंबर लेके रखे हुए हैं और वो 5 GST नंबर को अलग अलग नंबर पे सेल कर रहा है। सेलर एक ही है, बायर के 5 GST नंबर हैं और पांचों GST नंबर पे उसने परचेज किया गया है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हर GST I think there's some अमित जैन कांटेक्ट उसका ये हो गया, शायद बैटरी डाउन हो गई लगता है उनकी। I think there is some technical problem at the end of Amit Jain sir. So he just called me and we shall wait for 2 minutes so that he can rejoin and then we shall proceed with the our study circle meeting. Meanwhile, there are some questions that have been raised by some of the persons. और इसको I think we can have some more questions so हल हो गया? we can put them through to the speaker at the end of the question. जो भी अपने questions देना चाहें, they can just type in the chat box or raise their hand and we'll ask them to unmute them at the end of the session and take their questions.
Amit Janji has rejoined with us, and I think he'll be shortly sharing his screen. Yes, he's here now. Amit ji, over to you. Amit. क्या हो गया फिर से कुछ नहीं है वो जो 1 मिनट बस 1 मिनट ओके नो इशू यस सौरभ जी ओके आवाज आ रही है आ रही सर आप कंटिन्यू जी तो हमारा पॉइंट ये है कि हमने सेलर हमारा एक ही है और बायर के मान लीजिए 5 जीएसटी नंबर हैं तो हमको ऐसा नहीं कि हर जीएसटी नंबर का हमको एज अ होल देखना है टर्नओवर अगर मान लीजिए 4 जीएसटी नंबर के मिला के 50 से ऊपर हो रहे हैं तो हमको इंडिविजुअल नहीं देखना, हमको एज अ होल देखना है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। जैसे आपको मालूम होगा हम लोग टीडीएस के अंदर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेते हैं और लोअर डिडक्शन में हमको लोअर डिडक्शन के अंदर हमको इनकम टैक्स ऑफिसर से हमको टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाता है लोअर रेट का। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग टीसीएस के लिए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि 206C9 के अंदर अगर आप 206C9 देखेंगे तो वहां पे और सेक्शन तो लिखे हुए हैं, तो वहां पे 206C1C लिखा हुआ है लेकिन 206C1H नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टीसीएस लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन रिपीटिंग, क्या हम असेसिंग ऑफिसर को टीसीएस एट द लोअर रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो। व्हाई नो? क्योंकि 206C सबसेक्शन 9 के अंदर कहा गया है कि आप ये एलिजिबल नहीं है। नाउ द क्वेश्चन व्हिच कम्स इज व्हेन इज सेक्शन 206C1H नॉट एप्लीकेबल? ये अपन एक बेसिकली रिपीटेशन हो गया उसका कि दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। बेसिकली अपन पढ़ चुके हैं, ये छोटा सा एक एफएक्यू था तो यहाँ कवर कर लिया है। ये चीजें हमारी सारी कवर्ड हैं कि टर्नओवर हमारा ड्यूरिंग 10 करोड़ से कम हो, कंसिडरेशन 50 लाख से कम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट एम्बेसी लीगल इनको नहीं कर रहे हो। और ये चीज यहाँ 2-3 चीजें में इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएंगी जो मैंने ये स्लाइड जिसलिए कवर की है। ट्रांजैक्शन इज कवर्ड बाय टीडीएस, ये भी क्लियर है। और ट्रांजैक्शन ये गुड्स जो है 206C1, 206C1F और 206(1)G को पर्टेन नहीं करते हो। अब ये सीरियल नंबर 7 जो है ना, ये आपको एक्ट में नहीं मिलेगा। सीरियल नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये इन्होंने गाइडलाइन से ऐड किया हुआ है। तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि आप केवल एक्ट पढ़ के 206C1H नहीं समझ सकते, वो इसलिए कह रहा था कि जो सीरियल नंबर, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है कि टीडीएस ये 206C1H एप्लीकेबल कब नहीं है? कब नहीं है? जब टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो, बायर का 50 लाख से कम हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, टीडीएस कट रहा हो या इन ट्रांजैक्शंस में कवर्ड हो। बट ये आखिरी के 7 पॉइंट हैं, ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज व्हिच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये चीज अपन अप्लाई कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये समझने वाली चीज है। ये सीरियल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, जहां पे अभी ये सेक्शन 194O भी 1 अक्टूबर से अमेंड हुआ है। तो उसमें कहा गया है कि गेटवेज एंड जो हमारे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जब टीडीएस काटते हैं तो उन केस में जब टीडीएस कट रहा है 194O में तो टीसीएस अलग से नहीं आएगा। Likewise, receipt by insurance agent on which TDS is deducted under section 194O। और लास्ट ये कहा गया है कि फ्यूल सप्लाइड टू नॉन रेसिडेंट एयरलाइंस एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। सो इतने केसेस में हमारा ये एक जस्ट जनरल के लिए, और 7 नंबर से लेकर 11 तक इन्होंने बाद में ऐड किया है बाय वे ऑफ गाइडलाइंस। तो यहां तक हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली। अब हम एक बहुत जनरल सी बात करते हैं कि क्या स्टेप्स हमको, ये सब है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ब्रीफ अप करने के लिए कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम इस सेक्शन में एप्लीकेबल है कि नहीं। सबसे पहले चेक करें कि अगर हमारे पास कोई भी ओपिनियन क्या आता है कि हमारा ट्रांजैक्शन टीसीएस में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या सेलर लायबल है, बायर तो बाद में देखना है।
पहले हमको देखना है सेलर लायबल है क्या, हो गया चार्ज, नहीं करेगा। सेलर लायबल है, अगर सेलर लायबल है तो हम आगे बढ़ेंगे, सेलर लायबल नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे, है ना। और इसके लिए हमारे को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब क्या 10 करोड़ की लिमिट, सेल्स ग्रॉस रिसीव्स टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक्ट में लिखा हुआ है टर्नओवर ऑफ द ईयर ऑफ सेल, बाद में चेंज करके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कर दिया है। सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 हमें चेक करना है अगर हम 20-21 का वर्किंग कर रहे हैं। To identify the customer from whom receipts for consideration of sale is more than 50 लाख, हमने सेलर को देख लिया कि हाँ हमारा सेलर 10 करोड़ से ऊपर में आता है पुराने साल में, आज के अभी करंट में नहीं, पुराने साल में वो 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो हम टीसीएस में आ गए। फिर हम कस्टमर आइडेंटिफाई करें कि कितने लोगों से हमको 50 लाख से ऊपर पैसा आया है, वो हम देखेंगे। और जो हमारे 50 लाख की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, फिर हम उनको फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 अक्टूबर के पहले कितने आए हैं और 1 अक्टूबर के बाद कितने आए हैं। इस साल में हमको क्या करना है, पहला स्टेप सेलर को आइडेंटिफाई करो, दूसरा स्टेप बायर को आइडेंटिफाई करो कि कितने बायर से 50 लाख से ऊपर आया है, तीसरा स्टेप में 50 लाख को फिर बाइफरकेट करो कि अक्टूबर के पहले का कितना, अक्टूबर के बाद का कितना। अक्टूबर के पहले का अगर 50 लाख से कितना भी पैसा आ गया हो, टीसीएस नहीं है, बाद में आया है तो जो हमने इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 देखे थे वहां ढूंढ के हम अपने को एप्लीकेबल चेक करें। उसके बाद में फिर हम इनवॉइस बनाएं, और जो हम बात कर रहे थे इनवॉइस बना के हम अपना टीसीएस चार्ज करें। कैसे चार्ज करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जीएसटी जोड़ना है, सारी चीजें जोड़ना है, फ्रेट पैकिंग डिस्काउंट माइनस कर देना है, जो पैसा उससे मिलने वाला है वो जोड़ना है, उस पर जीएसटी जोड़ना है, उस पर टीसीएस जोड़ना है, और जीएसटी टीसीएस पे नहीं लगाना है। एडवांस मिले तो हमको एडवांस से भी टीसीएस लेना है। उसके बाद हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है वो लास्ट स्लाइड में मैंने कवर किया है। और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, जब पैसा मिल जाए तो उसके अगले महीने के 7 डेज में हमें टीसीएस जमा करना है, और टीसीएस जमा करने के बाद हमको रिटर्न फाइल करना है, और रिटर्न फाइल करने के बाद हमको उसको टीसीएस का सर्टिफिकेट देना है। ये एक बीच बीच में एग्जांपल इसलिए कर लिए थे कि थोड़ा सा हमारे को ब्रीफ होता रहता है, थोड़ा आदमी में इंटरेस्ट आ जाता है, इसलिए बीच बीच में स्लाइड्स में एग्जांपल डाल दिए थे। रिपीट भी हो जाता है, अपना रिव्यू हो जाता है, रिवीजन कह ले इसको अपन। तो अब हमने एग्जांपल देखे 4 हमारे यहाँ पे मैंने इसमें सेलर और बायर दोनों रखे हैं, क्योंकि बायर क्या है, डी वाले एग्जांपल में लोकल अथॉरिटी है। तो सेलर पहले केस में क्या है, 20-21 का टर्नओवर हमारा 12 करोड़ है, 19-20 का टर्नओवर सेलर, जब ए सेलर है, हमको पहले सेलर देखना है। ए सेलर में टर्नओवर कितना है, 19-20 में 10 करोड़। लाइबिलिटी फॉर टीसीएस, नो टीसीएस। क्यों टीसीएस? क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 10 करोड़ या उससे कम में टीसीएस नहीं है। तो ए साहब तो बाहर हो गए, बी साहब आए, बी साहब के टर्नओवर 10.01 करोड़ है, तो पहला कंडीशन एप्लीकेबल है। अब आ गए हम 40 लाख पे, कंसिडरेशन कितना मिला हमारा 40 और 10.5, ठीक है, तो 10.5 मिला, तो हमने टोटल 50 लाख किया, 50.5, 50 की छूट दे दी, 50,000 पे टीसीएस आ गया। सी भाई साहब आए, सी भाई साहब में क्या है, उनका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो लाइबल है, बायर कंपनी है, लाइबल है। 40 और 25 कितना हुआ, 65, 65 में से हमने क्या माइनस करना है, 50, कितना बचा, 15, 15 पे 0.05%। वेरी सिंपल। पहले देखो सेलर, I think there is some network issue again at Amit ji's end. We'll just wait for him to reconnect. अभी 10-15 मिनट लगेगा। अमित जी के साथ इश्यू ज्यादा आ रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है अभी नेटवर्क का कुछ इशू है, पहले तो शायद सिस्टम।
सर जब तक छोटी छोटी कुछ क्वेरीज हैं वो ले लेंगे अपन। जैसे वासुदेव जी लिख रहे हैं कि इज कॉन्ट्रैक्टर लायबल फॉर टीसीएस? अभी जन आ गए। क्या हो गया, हैंग हो गया? हाँ वो वाईफाई का कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क का इशू आ रहा है मे बी। वासुदेव जी का जवाब दे दें जब तक कृष्ण जी। भैया मैं नहीं दूंगा ना। दीपक बैती जी है, अनम्यूट करो उनको जरा। हाँ अमित जैन आ गए। इट इज जस्ट प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ अमित आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया क्या? बस 10 मिनट 5 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। ठीक, ओके। कर लूं, कंटिन्यू कर लूं? हाँ या बस 5 मिनट्स में वाइंड अप कर दूंगा सर। 10 मिनट्स मैक्सिमम है ना? अभी है ना टाइम 10 मिनट? हाँ 5 मिनट देख लो जी। हाँ यस सर। तो ये हमने देख लिया। तो दिस इज, हमने ये वाला देख लिया एग्जांपल। हाँ ठीक है जी, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये हम समझ चुके हैं कंसेप्ट। ये हमारे रिटर्न्स की ड्यू डेट की बात कर ली, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। ये 15 जुलाई है, लेकिन अभी कोविड के कारण से करंटली हमारे सितंबर तक की डेट बढ़ चुकी है। इसको विल स्किप। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग इज 200 रुपए पर डे की पेनल्टी है, और 271H में 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। इंटरेस्ट लगेगा। ये लास्ट स्लाइड है सर। अकाउंटिंग एंट्री अपन वेरी फास्ट वी विल डिस्कस। This is just a recommendatory entry. Everybody has its own option to prescribe the accounting entry. हम ये एंट्री कस्टमर, हमने मान लीजिए माल सेल किया, तो कस्टमर को हमने डेबिट किया, सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट, जीएसटी पेबल क्रेडिट और टीसीएस पेबल ऑन रिसीप्ट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, हमको पैसा मिल गया उससे, तो हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो थर्ड एंट्री है ये समझने वाली है, क्योंकि होता क्या है जब टीसीएस पेबल में आपने क्रेडिट किया तो रूल क्या है, जब कंसिडरेशन आपको मिलेगा तो आपको पे करना है। अब अगर आप टीसीएस पेबल में ही उस अमाउंट को पार्क करके रखेंगे तो आपको जब जमा करना है तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मेरे को उसमें से कितना जमा करना है। तो ये सीरियल नंबर 3 की एंट्री हमको एक इंपॉर्टेंट पास करनी पड़ेगी। नाम कुछ भी दे दें हम उसका, कि जब हमको पैसा मिलता है तो हम टीसीएस पेबल अकाउंट डेबिट करके टीसीएस टू बी पेड में ले जाएं, क्योंकि तो टीसीएस टू बी पेड अकाउंट होगा वो ही हम देख के पेमेंट करें। जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये थर्ड और फोर्थ एंट्री इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस पेबल में हम पहले पार्क कर लें पैसा, और जब हमको टीसीएस पेबल को जमा करने की लायबिलिटी आए तो हम एक एंट्री से उसको वहां से लेके यहाँ आए, ताकि जब हमको रिटर्न पैसा जमा करना है तो हम टीसीएस पेड अकाउंट देखें, पेबल अकाउंट ना देखें। और एक बेसिकली यही कंसेप्ट था टीसीएस एंट्री का, थर्ड वाली एंट्री। नाउ एक लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने अपन ने देखा होगा कि एक कंसेप्ट है कि जिस साल हम इनकम शो करते हैं उस साल हमारे को टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है, और ये सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देते हैं कैश सिस्टम में और मर्केंटाइल में। जैसे हम प्रोफेशनल्स लोग हैं, हम इनकम शो करते हैं कैश सिस्टम बेसिस पे, लेकिन सामने वाले ने हमारा टीडीएस मर्केंटाइल पे काट दिया, तो हमारा टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कट गया और इनकम हमने दिखाई 21-22 में। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि हमने जिस साल इनकम दिखाई उस साल हमें टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। ये कंफ्यूजन सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और अच्छे से इन्होंने चेंज कर दिया है। रूल 37I में इन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आ गए हैं कि आप जिस साल आप मान लीजिए आपने सेल किया आपने 20-21 में और पैसा मिला 21-22 में, तो 20-21 में आप इनकम दिखा चुके हो, अब 21-22 में आपका टीसीएस कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मैं तो 20-21 में इनकम दिखा चुका हूं, मैं 21-22 में आपको टीसीएस का क्रेडिट नहीं दूंगा। नो, यहाँ आ गया है आप इनकम ने भले ही पहले दिखाई हो, लेकिन जिस साल आपका टीसीएस कलेक्ट होगा उस साल आप टीसीएस के लिए एलिजिबल
हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे को प्रोसीजरल एरर्स को दूर कर देगा। तो विद दिस सर टीसीएस का मेरा जो 1H का प्रेजेंटेशन पूरा हो गया है। आप अमित कोई क्वेश्चंस है? सौरभ जस्ट रीड आउट आपका चैट बॉक्स पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आए थे। जी। पहले नीलेश कुशवाहा जी ले लेते हैं जी। उनका क्वेश्चन आंसर हो गया, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग अगेन, can TCS on goods under section 200 when there is other TCS already? बिल्कुल। सौरभ जी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर से बोलेंगे प्लीज। बना के जरा मेल कर देंगे। बना के मेल कर दीजिए। नहीं सौरभ बोल दिए समझ लेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। कैन द TCS on goods under section 206 1H Yes, sir. be collected when there is other TCS already applicable? No sir, when other TCS is applicable, आप इस सेक्शन से बाहर हो जाएंगे। बड़ा क्लियर है सर वो। अगला अरुण चौहान जी का क्वेश्चन है, मटेरियल सेल टू कंपनी, व्हाट अबाउट द आधार? अरे सौरभ जरा अरुण चौहान साहब हो तो उनको अनम्यूट कर दे। अरुण चौहान साहब और क्वेश्चन पूछ लीजिए जी। अरुण जी। अरुण जी सब्जेक्ट जी भी तो ऑनलाइन काम कर रहा है। अरुण चौहान साहब, क्वेश्चन मेरा भी है उसके बाद। हाँ अरुण चौहान साहब आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। कंपनी में अगर कंपनी है तो आधार कैसे मिलेगा? उनका एक्चुअली क्वेश्चन था आधार और पैन जरूरी है, तो आधार कंपनी में नहीं होगा। पैन ऑब्लिक आधार लिखा है तो अपन तो पैन अगर नहीं हुआ तो फिर दे आर लायबल टू बी एक्स्ट्रा ऑन अ हायर साइड। और पैन में तो सर आज की डेट में सर प्रोसीजरल बात करें तो पैन तो कंपनी के साथ नहीं बन के आता है आजकल। सो अगर कंपनी फॉर्म हो रही है तो पैन तो ऑटोमेटिकली साथ में आता है। ऑप्शनल है, यही लिख दूंगा। के पास पैन नहीं वो आधार दे सकते हैं, लेकिन कंपनी के पास तो डेफिनेटली पैन होगा ही, बिकॉज सर्टिफिकेट के साथ नहीं पैन और टैन आते हैं आजकल। तो ये क्वेश्चन आधार का है कि कंपनी के पास आधार नहीं होगा, पैन तो होगा ही होगा, आधार नहीं। इधर दोनों में से एक चाहिए ना कोई। यस सर। ठीक है, उन्होंने शुरू में आधार और पैन बोथ बोला था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए वो। पैन और आधार। अगला अमित जी मेरा एक क्वेश्चन है। दीपक एक सेकंड। ओके, is TCS under section 206 applicable on sale of immovable property if the person is a builder or developer? सर मैंने वो FAQ में कवर कर लिया है कि प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड इन द मीनिंग ऑफ गुड्स। सो इन दैट केस TCS 206C 1H में एप्लीकेबल नहीं है। अपने FAQ में कवर किया सर ये चीज। दीपक बैती जी आपका। सर अमित जी एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि एक जो आप ही की क्वेरी में था कि वर्ष 21-20 में हमारा टर्नओवर तो 55 लाख है, मतलब हमने पार्टी को 55 लाख का सेल किया है, बट रिसीट इज 45 लाख। Hence, this provision of TCS will not be applicable। पर जैसा अभी अपने पुराने डिस्कशंस में भी आया था कि हम सेल बिल के अंदर TCS को कलेक्ट कर रहे हैं। जी जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी चीज बिल में लगा करके कलेक्ट करते हैं जी, इट इज पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर दूसरे प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो या ना हो। तो इस केस में जैसे अपन उसी एग्जांपल की बात करें कि रिसीट तो 50 लाख से कम है, लेकिन हमने उसको रिकवर किया है, तो हमको उसके अंदर भरना चाहिए या उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? नहीं क्रेडिट बना करके रिवर्ट कर दें उसको। मेरे हिसाब से तो मेरा पर्सनल, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल चीज हो गई, इन माय पर्सनल ओपिनियन पहली बात तो हमको ये देखना है कि कहाँ हमारी TCS की लाइबिलिटी आएगी। उन्हीं केसेस में हमको बिलिंग में ध्यान रखना है जहाँ एक्चुअली क्या है कि ये साल के शुरू में तो अपने को नहीं मालूम पड़ेगी। करेक्ट। दीपक मेरा मानना है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो सेक्शन में डिफाइंड है कि रिसीट बेसिस में ही आना है। आप जो कह रहे हो कि लायबिलिटी हमने कलेक्ट नहीं किया होगा, जस्ट वी आर कलेक्ट किया है। नहीं वो तो रिसीट बेसिस में ही देना है ना अपने को तो। हाँ बिल्कुल सर। इसमें मेरा एक मिनट मैं ये बोलना चाहूंगा कि व्हेन अब ये थ्योरेटिकल बात अपन करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपनी जगह अलग फेस करनी पड़ेंगी हमको, लेकिन थ्योरेटिकल बात ये है कि जब हम
उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, द मोमेंट हमारा 50 lakhs के ऊपर उससे रिसीव होगा, एट दैट टाइम वी हैव टू मॉनिटर कि हमारा 50 के ऊपर हो रहा है तो हम टीसीएस को मैनेज करें, और उसके बाद तो पूरे पे आएगा। तो ये थ्योरेटिकल रिप्लाई तो यही है इसका कि अगर हमारी लाइबिलिटी नहीं है, सपोज इन दैट केस वी हैव बिल्ड हिम बाय दैट अमाउंट एंड इन दैट ईयर वी आर नॉट लायबल टू टीसीएस, देन द अमाउंट व्हिच वी हैव कलेक्टेड शुड बी रिफंडेड बैक टू द बायर, बिकॉज जो सेक्शन है वहां ये क्लियर है कि व्हेन यू आर लायबल, बिकॉज एक एफएक्यू और एक टैक्स गुरु पे एक लिटरेचर में पढ़ रहा था, तो सर एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, टैक्स गुरु में एक लिटरेचर में ये कहा था कि बहुत लोगों ने ये सोचा कि हम तो ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, हम इनवॉइस के समय ही पैसा ले लेंगे टीसीएस का, पैसा हमको बाद में आता रहेगा, हम टीसीएस का हम पैसा उससे ले लेंगे इनवॉइस के समय और जमा कर देंगे। तो इट वाज सेड कि ये अगेंस्ट द प्रोविजन है। प्रोविजन में जब कहा है रिसीव्ड means you are liable to collect only at the time of receipt. So if we do anything which is against the law, it is not correct. When there is no liability and we have recovered, we should refund the amount to the particular buyer. ये मेरा personal view है. It can be, I mean. So this ये चीजें हमको year to year basis पे साल के आखिरी में मॉनिटर करना पड़ेगी। हाँ, मतलब आप जैसे अगर प्रैक्टिकल बात करें तो collected through sales invoice, we have to refund him. मेरा सोचना यही है कि जब आपकी लाइबिलिटी नहीं है तो आपने you should not collect and deposit, और एक्ट में भी यही लिखा हुआ है और टैक्स गुरु के एक आर्टिकल में भी यही लिखा हुआ था कि you should not collect when it is not liable, और जीएसटी में भी यही है कि you cannot collect if it is not leviable as per the act. And Amit, probably I believe दीपक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा जी। नेक्स्ट भी पॉजिट एक वासुदेव जी का है, is that contractor liable for TCS? देखिए सर, बात यहाँ आती है कॉन्ट्रैक्टर, अपन कंसेप्ट समझे, व्हाट इज द लायबिलिटी, सेल ऑफ गुड्स इज लायबल। कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर तो लायबल है, बायर का मीनिंग क्या है, एवरीबडी इज अ बायर अदर देन द गवर्नमेंट एंड सो। नाउ व्हाट इज द सर्विस, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज सेलिंग द गुड्स देन टीसीएस लायबिलिटी इज देयर, and if the nature is something in which TDS या TCS is there, then no liability. So first condition is 50 लाख से ऊपर हो, सेकंड कंडीशन गुड्स का सेल होना चाहिए, एंड देन ओनली TCS liability is there. I believe वासुदेव जी योर क्वेश्चन रिजॉल्व। एक राका जी का है, निर्मल राका जी का, यदि गुड्स वापस किया गया तो टीसीएस की क्या पोजीशन रहेगी? सर अपन ने बात करी थी कि एडवांस आया है, वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। इफ द गुड्स आर रिटर्न देन गुड्स रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आ गया इंपॉर्टेंट है। आपने इनवॉइस कर दी रेस, टीसीएस भी रेस किया और पैसा नहीं आया तो लायबिलिटी नहीं है आपकी टीसीएस जमा करने की, तो सेम वो रिवर्स हो जाएगी इनवॉइस। ओनली थिंग इज कि जब पैसा मिलेगा तो आपको टीसीएस जमा करना है। अब उसका पैसा एडवांस में आ चुका है तो आप उसको जब एडवांस का वापस करोगे तो टीसीएस रिफंड नहीं होगा, बट अगर उसका पैसा ही नहीं आया है, इनवॉइस देके रिवर्स हो रही है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस बिकॉज टीसीएस इज ऑन receipt of the amount, not on the billing. I believe there is no more questions out there. वासुदेव जी की क्वेरी को थोड़ा मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा। सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है, मान लीजिए जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको जीएसटी में तो स्पेसिफिकली सर्विसेज में डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इससे पूछना चाहूंगा। 194C का जो वही रहेगा ना? हाँ, तो ये क्या इसके अंदर ये डीम्ड माना जाएगा कि गुड्स ट्रांसफर्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो सेल हुआ है मेरा गुड्स? देखिए, इन केस वो टीडीएस काट रहे हैं 194C में, तो फिर ये सेक्शन से ही बाहर हो जाएंगे, बिकॉज़ भारी हो गया तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को तो फिर अपन मान के चलेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। द मोमेंट वो 194C में लायबल हो गए तो 206C 1H से बाहर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वासुदेव जी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है कि अगर वासुदेव का अनम्यूट कर दो जरा, वासुदेव को। कॉन्ट्रैक्टर में टीडीएस तो कटेगा, 194C का तो कटना ही 100%, तो वो बाहर हो गए। द मोमेंट आप टीडीएस में आते हैं तो 206C 1H से बाहर हो जाते हैं, सिंपल। वासुदेव मेरे ख्याल से नहीं है अभी नहीं। कोई बात नहीं, फोन करके बता देंगे। ठीक है ना? नहीं अभी तो था, एक सेकंड पहले था। चल ठीक।
आप क्यों सौरभ, आपका और कोई क्वेरी तो नहीं बचा? नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं। ठीक है, मृदुल जी आप कंक्लूड कर दे। टाइम भी अपना टाइम भी हो गया, ऑलमोस्ट अपन 7 तक का लेके चल रहे थे। नहीं नहीं, अमित सर तो कह रहे थे कि हम तो 1 घंटा ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन 1.5 घंटा दिन पड़ गया सर थोड़ा सा, मालूम नहीं कैसा। देखिए क्या सब्जेक्ट छोटा होता है, लेकिन जब मन करने लगो तो काफी बड़ा हो जाता है। तो अमित जी को धन्यवाद करूंगा कि एक दिन के मतलब शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने तैयारी कर ली और पूरा मतलब स्लाइड्स बना के सब करके प्रेजेंटेशन बना लिया है। ओनली 1 डे शॉर्ट नोटिस, इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। और जो वो कहते थे तो वो छोटा सा जो नया चीज आती है वो छोटी सी भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती है और आदमी मतलब उसको कई चीजें ग्रेस्प नहीं कर पाता फर्स्ट टाइम पे। तो उन्होंने काफी अच्छे से समझाया और आगे भी हम उनका लाभ लेते रहेंगे। देन सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है। और सभी को मैं साथ में बता देना चाहूंगा कि कल भी हम लोग वैट की जो समाधान स्कीम आई है उसके ऊपर एक स्टडी सर्किल और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं जस्ट अभी नोटिस रिलीज कर रहा हूँ इसके खत्म करने के बाद में। उसको भी कल सब लोग 5 बजे ज्वाइन करें। मुकुल शर्मा जी उसमें अपना डेरिवेशन देंगे, नई स्कीम जो समाधान स्कीम आई है उसके ऊपर। सब लोग को उसमें काफी फायदा होगा, जो भी इश्यूज होंगे वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एंड अंत में मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर हमारे इस स्टडी सर्किल मीटिंग को सफल बनाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अमित। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, with your permission now, I हाँ सौरभ, yeah, we can completely Thank you. finish.